going multinational in the true sense in that way. It will be really a great session to look forward to. And the whole vision of the world, the whole vision of the future, the post-COVID world, definitely Rakesh ji is one of the best speakers on this. I've got many reviews about, you have got a fantastic speaker on for the day schedule from many of my friends. So, sir, we are looking forward to a great session from you. I'll try to rise up to your expectations. Thank you, sir. Praful ji? Sir, बहुत अच्छा होगा उसमें. And special thanks to Praful ji for having us connected to Rakesh ji. Praful ji, please come. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्रफुल्ल जी. प्रफुल्ल जी को अनम्यूट करना. It's my pleasure. Yes. Mahendra ji, it's my pleasure to be joining you, and I'm feeling very proud that Mr. Rakesh is connected to you and connected to Jito as well. Sure. Thank you. In fact, 20 years back, my first session in accountancy was at Nasik. It began with Nasik. Let me put it that way. Sir, it has come a full circle from Reliance adding a few zeros to the market capitalization every time. Yeah. So I think Nasik has a special place in your heart, which we really welcome, and it's glad to know. Sir, Shantilal ji has a warehousing business. He is quite established. They also have, their family has one of the well-known jewelry brand in and around Nasik area. We have a lot of accomplished people here, and they represent a diverse section of sectors in terms of their occupations. So I think the topic emerging strategies and business models, given the COVID context, I think would be apt, and people look forward to having a lot of takeaways from this session, which they can implement to steer their respective organizations in the directions where they can again go back to the normal growth rates which they have seen. It should be much I just more... wanted to add that Ajay ji is one of the great, what you can say, a serial entrepreneur, you can say that way. So just recently he sold his stake in SDFC Credit. महेंद्र जी, आपका वो थोड़ा आवाज कम आ रहा है, नहीं हो रहा है आवाज. It was a Nasik startup. So we are really fortunate, and Jito is a platform we respect. We have also our co-convener of this forum, Sandeep ji. Chat हुआ है आपको. Sandeep ji, I think unka mute hai. We'll have to unmute him. Unmute Sandeep ji, please. Yeah. Sir, welcome to Nasik Jito chapter, sir. Hi, namaste. नमस्कार सर. Thank you very much. अभी तक जितने भी नासिक के जीतो चैप्टर के थ्रू वेबिनार हुए उसमें 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे सर. आप भी उसी की मतलब उसी लाइन में हो और डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों से सुन रहा है सर. आज हमारे नासिक के जो ऑडियंस है या नासिक के जो जीतो चैप्टर के थ्रू अलग अलग चैप्टर भी कनेक्ट होते हैं, कई बार सिंगापुर वगैरह से भी लोग कनेक्ट होते हैं. तो सर रिलायंस इंडस्ट्री का जो अभी मतलब ओवरऑल जो जैसे अभी रिसेंटली फेसबुक के साथ में हुआ है, आगे भी मतलब कुछ सऊदी की कंपनी के साथ में जो चल रहा है, ये सारी जो न्यूज आ रही है मार्केट में, इसके ऊपर हमारे जितो मेंबर्स को क्या किस तरीके से कुछ मतलब इसके साथ में जुड़ने के लिए कोई अवसर मिलेगा क्या? मतलब जैसे अभी अमेज़न वगैरह जैसा मतलब ग्रोफर्स वगैरह के साथ में काम कर रही है मिलके, ग्रोफर्स वगैरह का जो प्लेटफॉर्म है जिस तरीके का, उस तरीके का हमारे मेंबर्स के लिए कुछ अवसर मिलने वाला है क्या सर? इसके साथ में कुछ है क्या अपॉर्चुनिटी है सर? I'll put it जीतो के जो अलग first of all I'll answer this. See, whatever I'm saying, जो भी मैं कहूँगा वो पर्सनल कैपेसिटी में है, वो कोई रिलायंस के बिहाफ पे नहीं है. लेकिन जिस किस्म से इंडिया में एंड फॉर्चुनेटली इट इज रिलायंस नाउ कि एफर्ट लेके जो एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन डिजिटल का बन रहा है, उस डिजिटल अपॉर्चुनिटी
से जो निकलेगा, जो वेरियस स्मॉल स्टार्टअप इकोसिस्टम निकलेंगे वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो अभी जो डिक्लेयर किया है इन पब्लिक डोमेन अब तक के लिए, तो यस द फोकस विल बी ऑन एजुकेशन, सो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहेंगे। फोकस विल बी ऑन फिनटेक, तो फिनटेक टेक्नोलॉजीज रहेंगे। जब भी अपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज बोलते हैं तो उसमें ट्रस्ट नाम की चीज होती है। तो जो कुछ संस्थाएं ऐसी होती है, बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर में जैसे जीतो टाइप के हैं, स्पेशली जैन कनेक्टेड टाइप के लोग होते हैं, दे आर फाइनेंशियली way above credible compared to some other parts and other community. So this become a natural advantage for all of you to scale up. So indirectly yes, सबको benefit होगा और आप लोग को थोड़ा ज्यादा होगा। जी सर, बस हमारे मेंबर्स तक ये बात अगर जाती है कि जी मेंबर्स रिलायंस के किसी तो आज के शायद आपकी वॉइस कट रही है इसमें बहुत मतलब बहुत कुछ मिल सकता है। संदीप जी आपकी आवाज यही कहना था सर कि आज के आपके जो स्पीच है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, यू कंटिन्यू। नहीं अभी आ रही सुने, अभी आवाज आ रही है। मेरा सिर्फ सर आपने जो बताया ये सुन के खुशी हुई। हमारे मेंबर्स अगर किसी भी इंडिया के नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। तो इसलिए आपका आज का जो संबोधन रहेगा, इस संबोधन में हमारे मेंबर्स ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस में वो कहाँ फिट बैठता है। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर तो है ही सर, एज ए इन्वेस्टर तो आपको ठीक है। और सर जस्ट टू ऐड टू दैट, सतीश भाऊ, शांति भाऊ, कैन आई ऐड समथिंग? या डेफिनेटली। यस राकेश जी, अभी जो रजनीश जी जैन है जो CFO ऑफ रिलायंस जियो, वो हमारे जितो प्रोफेशनल फोरम प्लेटफॉर्म पे आए थे मुंबई में, तो उन्होंने एक प्रीव्यू दिया था कि जियो क्या करेगा। और अभी लास्ट संडे हमारा एक द फैंग गैंग, इसके ऊपर वी हैड वन पैनल डिस्कशन, इन दैट वी हैड अ जेंटलमैन फ्रॉम Facebook, and when the question was posed to him as a since he was a part of the panelists, what does he see as an individual, meaning being a part of Facebook community, about how empowering the Jio Facebook deal would be. और उन्होंने जो बातें बताई थी कि ये पूरा गेम चेंजर है। तो जो संदीप जी जैसे कह रहे हैं कि रिलायंस का अपना जियो नेटवर्क है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, और उसके साथ अगर फेसबुक प्लस ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट जुड़ जाते हैं, तो इट कैन बी एन एनेबलर to as a trigger to various opportunities and the business model and strategies जो आपका आज cover करने वाले हैं। I think it can be really a game changer for all of us in terms of the next frontiers of growth for our members. Thank you. सर अभी 4:05 हो गए, 4:05 पे अपन स्टार्ट कर देते हैं। Sure. चलेगा अभी भाई, अजय भाई? Of course sir, yes. हाँ, तो 4:05 आप चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी स्टार्ट करूं जी? 1 मिनट, एक आपका वेलकम करेंगे हम। श्योर सर, वैसे सॉरी सर, आप नेटिव प्लेस कहाँ का है आपका? बोर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में। वैसे फादर एंड मदर ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम चिड़ावा, व्हिच इज सम 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। ओह अच्छा, ओके। तो आपका राजस्थान तो ओरिजिन? राजस्थान, यस। अच्छा, सारे राजस्थानी हैं, सारे वही है। अच्छा। अजय भाई? Yes. Naukar mantra? Yeah. We start with Naukar mantra. With the prayer, sir. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airyanam, Namo Uvajayanam, Namo Loesa Vasaunam, Eso Pancha Namokaro, Sava Pava Panasna, Manglanam Cha Sabvesim, Padmam Havai Mangal. Yes. गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय जिनेंद्र। आज का एक सेशन बहुत ही स्पेशल है। ऐसा शायद ही कोई है इंडिया में कि जो रिलायंस ब्रांड नहीं जानता है, और उसके साथ इतनी सारी कहानियां जुड़ी हुई है सबकी। किसी ने अपनी फैमिली में शादी कराई, किसी ने अपना घर लिया रिलायंस के जो शेयर्स लेके, और उसमें से जो मुनाफा हुआ उससे। तो आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि रिलायंस के जाने माने वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस वो स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने आ रहे हैं। अभी सभी बदलाव तो सभी जगह चलेगा, और जो हम घर में रह के बाहर का सिर्फ बदलाव देख रहे हैं, तो इसके लिए अपना बिजनेस का आगे की स्ट्रैटेजी और बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, ये सबके लिए बहुत ही जानना अनिवार्य है फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ।
So with that, we really are fortunate to have an esteemed speaker with us today. We welcome you, sir. Over to Sandeep ji. Yes, sir. Yes. Shantilal ji. Yeah. महेंद्र भाई इंट्रोडक्शन कर दीजिए. महेंद्र भाई. Mahindra, we have to unmute Mahindra bhai. Mahindra bhai, please go ahead. We can hear you. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Ajay bhai. Thank you, Shanti. It is a great honor to welcome and introduce Rakesh ji, one of the most eminent speakers on the topic which we are concerned as on today, the business models and all these things. We are always fascinated by the amount of risk which Reliance carries, with the amount of the dareful acts right from the launch of Jio, even before that, the huge petrochemical refineries, then now the stake sale to Facebook, and then now this rights issues, then the tie-up with WhatsApp. I mean, everything of this carries a huge amount of risk. And we have the person who knows everything inside out. He is the group-wide, Rakesh ji is the group-wide lead chief risk officer of Reliance, covering various businesses including oil and gas, refining, treasury and NBFC, real estate, infrastructure, petrochemicals, telecom and retail. Rakesh ji also leads corporate sustainability reporting and RIS, most importantly the annual reporting. So yesterday just the annual results were published, and so he's a bit free. We could get his time for today. Rakesh ji has previously worked for PwC and leading various engagements involving multi-gap reporting for clients such as Glaxo, Hindustan Lever, BSNL, Vodafone, MRPL, JSW, State Bank, Johnson & Johnson. He's also had led several opinion papers and has been an accomplished trainer for senior and middle management. Rakesh ji has delivered training as a lead instructor on behalf of PwC to companies in India, including Tata's, Birla's, and Reliance. Rakesh ji has also been contributor to IFRS manual. He has worked as co-opted board member for auditing and assurance standards of Institute of Chartered Accountants of India, and is a special invitee to the ASB Accounting Standards Board of the ICAI. He has participated in the various development of auditing standards and standards of reporting, Ind AS and all these things. So with this brief background, he has a number of things to be, which we can say, but then because of paucity of time, we would, I'll ask Rakesh ji to share his views about business strategies and business models. Rakesh ji, please, welcome. Thank you all very much. Namaste, Jai Jitendra. मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं and we'll start from there upon. Yes. Screen. हाँ, आप लोगों को दिख रही है? वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पेज ऐसा आ रहा है. Yes, sir. Yeah, we can see that now. Yes. Yes, we can see. Yeah, we can see, sir. Rakesh ji, we can see. Okay. हाँ, so sure. So जो आज अपने बात करेंगे वो टॉपिक है मेगा ट्रेंड्स. बेसिकली मेगा ट्रेंड्स की क्या-क्या चीज तेजी से बढ़ रही है, विच वी कॉल इट टेलविंड, जिसमें पीछे से प्रेशर होता है और उस चीज में जो भी रहता है वो आगे बढ़ जाता है. तो दैट इज मेगा ट्रेंड्स. उस मेगा ट्रेंड्स को देखते हुए चीज को एनालाइज किया जाता है, उसको वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं, जिसके बेस पे आदमी स्ट्रेटजी बनाता है. तो स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो 3 लेवल पे हो गई है. जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेटजी 1.0 जो आज से 25 साल पहले थी, लोग यूज किया करते थे. उसके बाद स्ट्रेटजी 2.0 आई, फिर 3.0 आई और आजकल लोग बोलते हैं 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इस जर्नी में कुछ चीजें हैं जो टाइमलेस लर्निंग है, जो अपना फाउंडेशन बनेगी बातचीत का. वो टाइमलेस लर्निंग इज द मेन थिंग एंड द क्वेश्चन इज नॉट कि इस सिचुएशन के लिए क्या किया जाए. जैसे अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो फॉर्मूला याद करते हैं, नंबर्स याद नहीं करते हैं. वैसे जब आप अपने मेगा ट्रेंड स्ट्रेटजी एंड बिजनेस मॉडल्स देखते हैं तो वो फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे रादर देन इस सिचुएशन में क्या. तो व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस कि इस सिचुएशन में क्या, तो दैट विल टेकन इन Q&A.
एंड व्हाइल डूइंग दैट आप लोग जब देखोगे, मैं स्लाइड्स को थोड़ा कुछ स्लाइड्स पे बातें करूंगा, बाकी इज अ मटेरियल विच यू ऑल कैन यूज इट फॉर एवर फॉर योर लाइफ। और आप चाहिए तो अपने नाम से या जो भी चेंज करना चाहे स्टूडेंट उनके नाम से किसी और को कोच करना चाहे तो ऑलवेज ये ले सकते हैं। आई शेयर इट द एडिटेबल वर्जन जो कोई भी यूज कर सकता है इंडिया में। नाउ वो जो चीज होती है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस चीज को जो समझ पाता है आज की दुनिया में, तो कॉमनली ये बोलता है पर्सन शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। उस दौरान सब लोग बढ़ जाते हैं, एंड इफ वी आर एट रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम तो अच्छे से अच्छा आदमी भी गिर जाता है। इट इज दैट टाइमलेस लर्निंग with reference to more than 150 companies. You will see their brands, and I'll be just showing the brand of those companies along with the relevant frameworks, so वो देखते ही लोग समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। The first context is ये जो दुनिया के टॉप 50 ब्रांड्स देख रहे हो आप स्क्रीन में, ये जितनी भी कंपनीज है इसमें एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है? फर्स्ट, यहाँ आप 25 कंपनी देख रहे हो, सेकंड स्लाइड में भी आप 25 कंपनी देख रहे हो। ये 25 कंपनी में कॉमन चीज क्या है? 25 + 25 50। इन सब में एक ही चीज कॉमन है कि जब मेगा ट्रेंड्स चेंज हो रहा था ये चेंज नहीं हुए, और क्योंकि ये चेंज नहीं हुए तो उनको गुजर जाना पड़ा। और ये किसी जमाने में उस वक्त की, उस दौरान की सबसे बढ़िया कंपनी थी। अब इसमें आप कहोगे अरे नहीं नहीं नहीं, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक जो तुम आप सबको नीचे दिख रहा है ये तो आज भी चालू है। ये ब्रांड चालू है, जिसने कंपनी चलाई थी उसकी कंपनी पूरी खत्म हो गई, किसी और ने टेक ओवर करके नया काम शुरू किया। तो जैसे नेशनल ज्योग्राफिक का काम था कि वो जाते थे डीप सी, बहुत अच्छी अच्छी फोटो लाते थे और वो उस पब्लिकेशन में बेचते थे। लोगों ने कहा कि इसको डिजिटल करो, लोगों ने कहा कि उसको टीवी पे दिखाओ, तो ये नहीं दिखाते थे। ये सोचते थे हमारा इतना अच्छा काम है कि जिसको जहाँ आना है वो यहाँ आके देखेगा। वो चेंज नहीं हुए। उस वक्त की टेक्नोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, और ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छा नहीं दिखता था, प्रिंट अच्छा दिखता था। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट की जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी वो इतनी तेजी से इंप्रूव हो रही थी, क्वालिटी इतनी तेजी से इंप्रूव हो रही थी कि इन्होंने जिस जगह में काम की थोड़ी शुरुआत करनी चाहिए थी वो शुरुआत भी नहीं की। तो हुआ क्या, जहां शुरुआत नहीं की वो सब गए, क्योंकि वो फील्ड भर रही थी और इनको अपनी फील्ड से हाथ धोना पड़ा। सेम हैपेंड टू मेसी, same happened to Sony. Palm Top, which was one of the biggest thing before iPad and other things, that has gone away. IBM machine has gone away. It has gone for more than 3 times takeovers. So for all practical purposes, Segway, कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं, और ये चीज MSME में मैंने काफी देखा है कि उनको लगता है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट का निर्माण किया वो इतना अच्छा किया है कि कोई भी लेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं बिकता है। चाहे वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ पे हो, मेडिकल पे हो, फिनटेक पे हो। वैसा ही एक प्रोडक्ट था, जब भी आप लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हो तो सिगवे देखते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो सेकंड चीज देख रहे हो, दिस पार्ट, ये चीज जो खड़े खड़े स्कूटर चलाते हैं फन टूरिस्ट के लिए, ये आइडियली इसकी बनावट इस हिसाब से की गई थी कि लोग गलियों में चलाए अपने लिए, लेकिन कॉस्ट एंड अदर थिंग्स वर सो प्रोहिबिटिव कि वो लोग कर नहीं पाए। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो मेन बुनियाद होती है वो होती है कि मेगा ट्रेंड्स क्या है, किसी जमाने में मेगा ट्रेंड्स क्या थे, आज क्या है और कल क्या रहेंगे। इस बुनियाद पे फ्रेमवर्क बनता है, तो वी कॉल इट मेगा ट्रेंड्स। बिफोर अपने मेगा ट्रेंड्स में जाने से पहले देखना चाहें तो बेसिकली आज की दुनिया में 4 तरह के मेगा ट्रेंड चालू है, और चारों एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। पहला मेगा ट्रेंड है फिजिकल, दूसरा मेगा ट्रेंड है डिजिटल, जो आज कई लोग, क्योंकि जो चीज सामने सोसाइटी में आ जाती है वो लोगों को दिखती है, और जो दिखती है तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन जो चीज की पैदावार स्केल पे लाने के लिए आज से 10 साल 5 साल पहले शुरू हुई थी, तो मेगा ट्रेंड शुरू हुई थी। बायोलॉजिकल मेगा ट्रेंड्स अब शुरू हो रहे हैं, एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, और ये सब लाइव एग्जांपल्स है।
और सोसाइटल मेगा ट्रेंड्स, कुछ चीजें हमने अभी देखी शुरू की है और बहुत सी चीजें हम देखना बाकी है और उसके लिए काफी चीजें डेवलप हो रही है. Just as an introduction, also an NI from Harvard School, where all these things are taught. The focus is strategy and business model. And additionally, from a technology perspective, Boston Make Institute and Massachusetts Institute of Technology, I'm an alumni over there, including Advanced Management Program. तो जो टेक्नोलॉजी चीजें जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एकदम ऑथेंटिक सोर्स से, क्या तो लेबोरेटरी में देखी हुई या सुनी हुई या उसका रेफरेंस होगा ही होगा. तो इट इज नॉट समथिंग लाइक नॉवेलिस्ट. जो भी आप अभी देखने वाले हो वो एक्चुअल लेबोरेटरीज या पायलट या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या लॉन्च, ये सारी फेज में से किसी एक फेज में जरूर बिलोंग कर रही होगी. एंड दैट इज माय कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द लिटरेचर. Now, let's take a live example. आज से 1845 से 150 साल पहले जब नेपोलियंस ने वॉर जीता तो राजा को जो खाना दिया गया वो एल्यूमिनियम प्लेट में दिया गया. जो मंत्री था मेन वॉरियर उसको गोल्ड में दिया गया और जो उनके नीचे थे उन्होंने सिल्वर में खाना खाया, सिल्वर प्लेट्स में. द क्वेश्चन इज राजा को एल्यूमिनियम में क्यों दिया गया? उसका आंसर ये है, एल्यूमिनियम वॉज कॉस्टलियर देन गोल्ड. यस, इन 1845 एल्यूमिनियम की प्राइस गोल्ड की प्राइस से ज्यादा थी. एल्यूमिनियम बनता है, बनने के लिए दो चीज चाहिए रहती है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी. और उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो एकदम ही लेबोरेटरी लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी होती थी, उससे ही बनता था. तो क्या हुआ, एक प्रोसेस डिस्कवर हुई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. वो इलेक्ट्रोलिसिस धीरे धीरे वो रिफाइंड स्टेज में होने लगी, एक्सपोनेंशियल कर्व पे होने लगी. तो वो प्राइस इतनी कम हो गई कि जो मटेरियल चाहिए आपको वो अबंडेंट में है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस गिरती गई और आज 100-200 हजार रुपए किलो आपको एल्यूमिनियम मिलता है. यहाँ पे आपको सोचना है, सबको सोचना है, अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में हो जिसका सब्स्टिट्यूट आ रहा है या टेक्नोलॉजिकली प्रूवन है या लेबोरेटरी लेवल पे प्रूवन है, तो क्या वो बिजनेस का आपको स्टॉक रखना है? जिन्होंने एल्यूमिनियम की, सोने की दुकान की जगह एल्यूमिनियम की दुकान रखी, उन दुकान वालों का क्या हुआ? उनकी सप्लाई चेन का क्या हुआ? उनकी पूरे फैमिली जो पूरे बिजनेस पे डिपेंडेंट थी उनका क्या हुआ? आज की डेट में दो चीज मैं देख चुका हूं. एक, जो डायमंड है वो आर्टिफिशियल वे की प्रोसेस इंप्रूव होती जा रही है, तो सूनर और लेटर जो आज का जीआई सर्टिफिकेशन के बेस के जो डायमंड्स आते हैं उसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से बनाना चाहो कोल्ड कंप्रेशन से, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. धीरे धीरे वो कॉस्ट कम हो रही है. सो दिस इज द फेट ऑफ some industries which are precious stone of today but will not be a precious stone of tomorrow. गोल्ड में, एंड आई शेयर, मैंने इसमें स्लाइड रखी नहीं थी, वो मेरे MIT लिटरेचर में है कि एक पर्टिकुलर मेटल है जिसका खाली एक पर्टिकुलर एंगल चेंज कर दो, तो जैसे आप एंगल चेंज करते हो लोअर लेवल पे उसका सब्स्टिट्यूट डेवलप हो जाता है. ये अभी तक लैब लेवल पे उसको नैनो लेबोरेटरी बोलते हैं, उसमें अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ है. करना कैसे है वो नहीं पता, कर सकते हैं वो पता है. तो दैट बिकम्स अ पॉसिबल सब्स्टिट्यूट इन टाइम्स टू कम. So the main message is whatever is the precious stone of today will no longer be precious stone of tomorrow because of development of technology. That's the first mega trend that I would like you all to take a note of. Second, the people used to compete cars पहले slow चलती थी horses से, धीरे धीरे there was a speed in engineering and now cars has taken over the horses. तो उन चीजों पे हम नहीं जाते हैं, those are well talked about. But what we have seen is industrial robots जो शुरू में आज से खाली 15 साल पहले $1.5 लाख के आते थे, अभी गिर गिर के the most recent आपको $7,000-8,000 में भी मिलने लगे हैं. In times to come वो और सस्ते हो जाएंगे. And there is an implication on that. Now let's take another nano material से जो बना हुआ, और ये मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में आज, इसका नाम है ग्राफिन. ग्राफिन की खासियत ये है कि वो 200 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसको पतला भी कर सकते हो. एग्जाम्पल, अगर आपकी कार का वेट 1100 किलो है और उसके 1100 किलो
की कार में जो इंजन लगना है उसके बाद वो 600 किलो और उठा सकती है, तो देयर इज अ ग्रॉस वेट एंड अ डेड वेट। सो ये जो आपका 1100 किलो की कार है उसके लिए 200 गुना कम, मतलब खाली 5 किलो ग्राफिन से आप कोई स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको उतना इंजन पावरफुल भी नहीं चाहिए कि जो 1600 किलो लेके जाए, आपको इंजन भी और डाउन करना पड़ता है। तो ये जो सब्सटीट्यूट है ग्राफेन आज की डेट में जो स्टील के लिए है वो इतना स्ट्रांग है। शुरू में लोग कहते थे कि नहीं नहीं इट्स $1 मिलियन पर ग्राम, अभी फिर लोगों ने $1000 पर ग्राम में बनाना शुरू हुआ। And there are few industrial giants in the world who are looking to come out to set up a large plant. जैसे रिलायंस ने जियो प्लांट बनाया है तो इतना कॉस्ट सस्ती हो गई है कि 1 GB का पहले 2000 रुपए लगते थे, आज की डेट में 10 रुपए भी नहीं रखते 1 GB के लिए, 2000 से 10। वैसे ही ग्राफीन का प्लांट कुछ लोग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जो $25 $30 1 किलो के लिए ग्राफीन होगा। जब ऐसा होता है तो सोचिए कि उन कंपनीज का क्या जो आज प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनका प्लांट 25 साल के लिए उन्होंने स्टैब्लिश किया है और आज उनके सर पे डेट है। ये सब तो बेसिक्स है। जब आप देखते हो 1945 से whatever we spoke up to graphene, it is basic a single material। अभी जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं we call it composites। तो composites में there are endless possibilities, endless possibilities। And if you noticed, even my company and whatever I'm saying, it is not on behalf of my company, nor I abide by it. One of the publicly available information is we have acquired something which can convert into composites। It is endless possibilities of tomorrow। अभी आओ अपने ये देखते हैं कि what is the timeless learning, and then here I'll also connect with certain things in relation to some timeless learning coming from Jain community towards the last। इसमें जो आप 4 फेज देख रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेल टू एयरबीएनबी, और ये टाइमलेस लर्निंग एंड करने अपने याद रखने की सोचेंगे बिफोर वी गो टू स्पेसिफिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी। नाउ वी आर जस्ट सेटिंग द फाउंडेशन, खाली फाउंडेशन पे अपने एक बार बात कर रहे हैं जिससे कि अपने बड़ा सोचे, लंबा सोचे, 10-20 साल के हिसाब से सोचे। नाउ आज से 50 साल पहले एक कंपनी थी जो कहती थी कि मैं टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूव करूंगा लेकिन मैं अकेला इम्प्रूव करूंगा। तो वो लोग कहते थे मूरेज लॉ कि मैं हमेशा मेरी जो चिप है इतनी पावरफुल बनाऊंगा कि हर 2 साल में वो दुगना काम करेगी एट हाफ द प्राइस। तो डबल द क्वांटिटी एट हाफ द प्राइस, डबल द क्वांटिटी एट हाफ द प्राइस। तो 20 साल में 1000 गुना क्वांटिटी हो जाएगी और 1000 गुना सस्ता भी हो जाएगा, लाइक द पावर ऑफ मोबाइल फोन। तो ये कंपनी ने जो खाली इनवर्ड फोकस थी, इनको $1 ट्रिलियन कंपनी में बनने में 50 साल लगे। नाउ इसके बाद एक दूसरी कंपनी आती है, वो बोलती है मैं अकेले काम नहीं करूंगी, आप लोग जो भी काम करते हो उसको खाली ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो वर्ल्ड इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज करूंगी, उसका नाम था गूगल। दे जस्ट ऑर्गेनाइज जो व्हाटएवर इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब, दे जस्ट उसको ऑर्गेनाइज करती है और आपसे 1 रुपया नहीं लेती है उस बिजनेस को, क्योंकि वो दूसरों के लिए किया उन्होंने। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एट स्केल, दे टुक सम 20 years टू बिकम $1 ट्रिलियन कंपनी। उसके बाद एक कंपनी आई जो बोलती है मैं आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी, आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने आप ऑर्गेनाइज करो, मैं आपको प्लेटफॉर्म देती हूं जिसपे आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करो। तो वी कॉल्ड इट फेसबुक, एंड फेसबुक को 10-12 साल लगे। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है, वो बोलती है आप आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करो, खाली इंफॉर्मेशन नहीं आपकी एसेट्स भी ऑर्गेनाइज करो। सो दे गेव यू अ पावर टू ऑर्गेनाइज योर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एसेट्स। खाली उसके लिए मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको बना के दूंगी। तो उस कंपनी का नाम था एयरबीएनबी, विच गिव्स यू अ पावर कि आप आपकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी इंफॉर्मेशन एक लोड करो कि आपके पास कैपेसिटी है और है तो कौन सी एसेट आप डाल रहे हो। तो आपने एक पावर ट्रांसिशन की खाली प्लेटफॉर्म पे, विच इज इंफॉर्मेशन एंड एसेट। उनको 10 साल भी नहीं लगे एंड दे बिकम $1 ट्रिलियन कंपनी। So the timeless learning that is emerging from $1 trillion company is, instead of only internal focus, focus on a broader purpose, और वो broader purpose should be a transformatory purpose, और उस purpose को खाली enable करो और दूसरों की value enablement अपने करते जाते हैं।
पहले खाली information, फिर information per assets, and now it is coming more. I'll come with subsequent examples with more than 10 startups with names therein in subsequent slides. So that becomes a timeless learning. Now let's move at a few of the advancement only as an example. I'll take an example with respect to food. With respect to food, there are certain developments जिसमें artificial protein, plant-based protein can be made at abundance, और इसका startup at scale already by Bill Gates launch हो चुका है, which is available on the web. Similarly, there are vaccines which are now made available. अभी करंट बीमारी अपने यहाँ सबने फैली, उसमें लोग सोचते हैं 1 साल में लॉन्च हो जाएगा, तो 15 साल की चीज 1 साल में लॉन्च हो सकती है, द एंटायर प्रोसेस. और विद इन द वैक्सीन भी जो डेवलपमेंट्स हुए इस किस्म से हुए हैं कि इंस्टेड ऑफ सीवियर इंजेक्शन एंड अदर थिंग्स, इट कैन बी जस्ट बाय swallowed pills, and these are the things that are happening. Gene editing is another thing, and it has a huge implication, including the longevity of years, 100 years होती है hypothetically. So instead of more thumbs ups, people will buy more Karela juice, health juice without sugar, because the buyers are belong to the later age category, and that affects your strategy and business model. That affects कि आप कौन सा product market में लाओगे, just because one thing, longevity of life. Try and look at these things. The mega trends to sub trends, ये क्या है जो हम कहना चाहते हैं? हमने जो एग्जाम्पल लिया था एक रूम का कि लोगों के पास करोड़ों रूम है, हर आदमी के पास एक एक्स्ट्रा, तो लोग एयरबीएनबी पे दे देते. टाइम क्या है, जो भी चीज सरप्लस है आपके पास और आप जैसे अपने जैसे लाखों लोगों के पास सरप्लस चीजें हैं, तो उस चीज से वैल्यू बनाई जा सकती है. द की लर्निंग इज, द की मेगा ट्रेंड इज, जब हर एक के पास कुछ सरप्लस है तो वो सरप्लस मन के लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म लो जिसमें वैल्यू कैप्चर होती है और वो सरप्लस से फिर वैल्यू बनती है. ऑल दीज आर लाइफ सिचुएशन. तो पहला सरप्लस था अपने पास रूम का, परमानेंटली रहता. फिर सरप्लस आया गाड़ी का कि दिन में 12 घंटे की जगह खाली 1 या 2 घंटा हम चलाते हैं, 8 घंटा फ्री है. तो लोगों ने आज करनी शुरू की, तो वी हैव ओला, उबर नाउ. ये जो आप बीच में देख रहे हो लहंगा, जिसकी चीज नाउ मोर देन $1 वैल्यूएशन, उनके प्रोफेसर और मेरे प्रोफेसर सेम, दैट इज डीन सुनील गुप्ता फ्रॉम HBS. तो उनका ये कहना था कि हमने जब शादी की तो जो लहंगा बनाया वो साल में 1 बार यूज किया, ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी में 2-3 बार यूज करेंगे, बाकी दिन कबर्ड में है. तो ऐसे हम जैसे लाखों लोग हैं जिसके पास सरप्लस है, जिस वो सरप्लस के लिए खाली एक प्लेटफॉर्म बना दो. तो उन्होंने लहंगा.com बनाया एंड नाउ शी इज अ बिलियनियर. तो वो हुआ. तो लोगों ने पहले फ्लैट जो सबसे महंगी चीज थी वो आई, फिर गाड़ियां आई, अभी ये सब सरप्लस की चीजें आ गई. अभी जो ये जो सरप्लस की चीजें ये खराब नहीं होती है. आजकल लोग पेरिशेबल चीज पे भी जाने लगे, लाइक फ्रिज, कि फ्रिज में सरप्लस क्या है. तो कुछ सोसाइटीज में लोग अपना कॉमन ऐप में डाल देते कि मेरे पास ये सरप्लस है, किसी को लेना हो तो ले लो. इट मे स्टार्ट एज फ्री. शुरू में ये सब चीजें फ्री स्टार्ट होती है, लेकिन जब वो मोमेंटम पकड़ती है तो वैल्यू क्रिएशन होता है. वैल्यू क्रिएशन होता है तो उसमें पैसे आने लगते हैं, बिजनेस मॉडल्स कन्वर्ट हो जाते हैं. सो जो अपने इंडिया में जब अब आज की डेट में है और अपने पास इतना बड़ा नेटवर्क आ रहा है मोबाइल का, टेलीफोन का, और उसके बाद जो पहले कनेक्शन होता था खाली कॉल से होते थे, फिर वीडियो से होते थे, अभी टुमारो व्हाट्सएप से भी होंगे, एंड देयर विल बी वेरियस थिंग्स व्हिच कैन बी चेक्ड. उस अपॉर्चुनिटी को सरप्लस से जोड़ा चाहे. सरप्लस कैन बी योर कंटेंट, सरप्लस कैन बी योर इंडस्ट्रियल वेस्ट, सरप्लस कैन बी farmhouse which you have kept it extra, surplus can be your own skill set, surplus can be your recipes. जो भी चीज आपको लगता है आपके पास यूनिक है वो तो बिकती ही है, और जो चीज आपको लगता है सबके पास एक्स्ट्रा में है और कभी कभी किसी और को भी चाहिए रहती है, तो उसको खाली इकट्ठा करते हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो वो आपका एक बड़ा बिजनेस बन जाता है. नाउ लेट्स लुक एट द अदर पार्ट. The other part that we are talking about कि अभी जो भी चीज है वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज है फॉर बिजनेसमैन. अपने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिस डेवोस में, स्विट्जरलैंड, DAVOS,
वर्ल्ड के जितने भी सीईओज हैं उसमें जाते हैं टॉप लेवल पे, और वो लोग कुछ कॉमन चीजों पे एग्री किए हुए हैं। तो जो कॉमन चीजों पे एग्री किए हुए हैं उसको बोलते हैं SDG, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। कुछ लोग ग्रीन भी बोलते हैं, बट द रियल एंड द ब्रॉडर लैंग्वेज इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। तो उसमें 17 गोल्स एग्री किए गए हैं। उसमें से जो मेजर मैक्सिमम गोल है दैट दे टॉक अबाउट कि कौन सी चीज से बिजनेस रिस्क को खतरा है और कौन सी चीज से इम्पैक्ट आएगा। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड में देखते थे तो पहले लोग एसेट्स रिलेटेड चीज देखते थे। 2009-10 में देखोगे तो सब आपको ब्लू कलर दिखेंगे। अभी 2018 में आते हैं तो अपने को ग्रीन एंड अदर थिंग्स से खतरा है। एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अपने सबने देखा होगा कि हवा कितनी क्लीन हो गई है। तो इफ यू वांट यू कैन चेक, और अभी आप आपके मोबाइल पे देखना चाहो तो एक वर्ड टाइप कीजिए AQI। AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वो जब आप देखोगे, उसका आप इंडेक्स देखोगे या ग्राफ देखोगे, तो जैसे बॉम्बे का एवरेज 300 रहता था, स्विट्जरलैंड का 25 रहता था एयर क्वालिटी, बॉम्बे की 300, दिल्ली का कभी कभी 700 भी हो जाता था, एवरेज 400। लेकिन आज की डेट में अपने 25-30 के AQI पे ब्रीथ कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड बिकॉज पीपल हैव सीन दैट ग्रीन का इम्पैक्ट आज लॉकडाउन में, तो लोग ये ग्रीन रिलेटेड चीज एंड ग्रीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मांगेंगे। गवर्नमेंट भी बहुत से लॉस लाएगी कि सब ग्रीन ही करो। सो दैट बिकम्स, और जो चीज ग्रीन नहीं है, एंटी ग्रीन है, उसके लिए सोसाइटी विल इमर्ज एज अ मेगा ट्रेंड कि हमें वो नहीं चाहिए। जैसे किसी का DG सेट है और वो उससे कूलर चलाता है तो सोसाइटी बोलेगी मैं है, और किसी का सोलार है जो छत पे है तो सोसाइटी बोलेगी वो एनकरेज करो चाहे उस पे लॉस होता है। 40% of the energy should only come from green. So the underlying current that is coming out is from asset efficiency towards green. इसका कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको। स्टैटिस्टिक्स ये है कि आज जब अपन बात कर रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पे जो एमिशन है वो करीबन है 40 गीगाटन। अर्थ कैन नॉट अडॉप्ट मोर देन 800 गीगाटन्स ऑफ कार्बन। नाउ 40 गीगाटन एक साल में एमिट होता है तो हवा में ही रहता है। तो आज तक जैसे अपना 350 गीगाटन हवा में एमिटेड है, वो अपर लिमिट 700-800 गीगाटन तक ही लिया जा सकता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है तो फिर जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू होती है और वो फिर पानी का लेवल बढ़ जाता है और जो जितने भी बॉर्डरलेस सिटीज है वो चली जाती है। सो द मेगा ट्रेंड दैट इज emerging is not to develop cities which are low lying, but develop smart cities which are at a higher level. So the land bank and other things which emerges is from the perspective which will support the climate change. Additionally, there will be a प्राइस रहेगी कि अगर कोई 1 टन कार्बन एमिट करता है तो जैसे आज की डेट में स्वीडन में $130 का टैक्स है पर टन ऑफ एमिशन। अपने यहाँ अगर 130 USD का 130 यूरो का टैक्स लगाने की जगह खाली 1.3 यूरो का भी टैक्स लगाए तो कंपनी से बच जाएगी। In other words, the companies which are emitting will face a hard time in times. Now let's look at certain developments और उसका impact, and then we'll go to BSE 30 companies with names. Average life expectancy बढ़ती है तो उसका impact क्या? Impact healthcare cost की जगह जो entire consumption pattern है वो change होता है। And we spoke briefly, if people instead of having aerated drinks will have healthy drinks, because the average age of consumption is not from the perspective of say aged group of 12 to 20, but there are more regular users from age 50 to 80 who does not have an ecosystem where the family members make juices for them. They buy ready-made sugar-free juices. That's the change that I see as a starting point. Let's try another thing, AI. आज से 30 साल पहले कंप्यूटर ने पहली बार ह्यूमन को हराया था चेस में। ये बात आज सबको मालूम है। जो मैंने देखा है वो आपको बताता हूं। अभी साल पहले ही there is a concept of board of doctors in Massachusetts Medical Institute. तो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो रिकमेंडेशन देते हैं फॉर पेशेंट, उसकी कंपैरिजन वॉटसन कंप्यूटर्स के AI से की जाए। तो वॉटसन कंप्यूटर का AI जो रिजल्ट देता है दैट इज बेटर देन द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड टुडे।
ये जो है आज की डेट में वॉटसन कंप्यूटर्स विच इज फ्रॉम IBM, उनके पास ये आज है। आज नहीं तो कल ये टेक्नोलॉजी आप सबके मोबाइल पे आ जाएगी। जब ये आपके मोबाइल पे टेक्नोलॉजी आती है, चाहे 3 साल में या 10 साल में आई, कि you just click, you scan all your reports, you scan certain barometers and indicators, and there'll be physical scanner also in times to come which will measure temperature and other things. तो ये जो बड़े बड़े कंसल्टिंग लेके बैठे हैं, चाहे वो मैकेंसी है, चाहे वो बिग 4 है, चाहे वो R&D स्पेशलिस्ट है, और कुछ लोग डेटा गैदर करते हैं, सोचते हैं वो डेटा मैंने अक्यूमुलेट किया है तो मेरी इसलिए वैल्यूएबल है, ये सब बिजनेस की कोई जगह नहीं है इन टाइम्स टू कम। उसका प्रूफ आज की डेट में वॉटसन कंप्यूटर डिफीटिंग द बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स टुडे, ये हो चुका है। एंड दैट्स द पावर ऑफ AI वी आर टॉकिंग अबाउट। So those, any business which picks up the knowledge as a business is not a good business in times to come, because knowledge is approaching free. The way Google is free, tomorrow knowledge and applied knowledge will be free. Water on paper लोग बोलते हैं शॉर्टेज है, वो अलग बातें हैं। वाटर की दुनिया में कोई शॉर्टेज नहीं है, खाली एक लेक ऐसा है, टेक्निकली उसको कैस्पियन सी बोलते हैं, इट्स अ लेक जो पूरी दुनिया का वाटर सबको प्रोवाइड कर सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। एनर्जी लोग बोलते हैं शॉर्टेज में है, देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन टाइम्स टू कम। आज की डेट में भी कुछ स्टेट्स के पास सरप्लस है, इंडिया में भी। तो जो पहले 300 रुपए पर यूनिट की प्राइस आती थी सोलार की, घट घट के अभी लेटेस्ट जो बिड गई थी एट I'll say 3 gigawatt level of bid, that was only for 2 rupees 2.4 per unit। 300 से 150 से 75, 75 से 20 रुपए, 20 से 10 रुपए, 10 से 5 रुपए, अभी 2.5 रुपए, और कल जाके हो सकता है 10 पैसे पर यूनिट। ये तो गिर रही है। जैसे हमने पहले बात की थी एल्यूमिनियम वर्सेस गोल्ड, वैसे ये आज के लिए बातें हैं एनर्जी प्राइसेस। व्हाई? एनर्जी जितनी हम पूरी वर्ल्ड में कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी 88 मिनट्स में, एवरी 88 मिनट्स अपने को सूरज उतनी धरती पे ऐसे ही दे देता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग, जिसकी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो एनीथिंग टू डू विथ पावर सेक्टर ऑफ ट्रेडिशनल कंपनीज इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, स्ट्रिक्ट नो नो। रोबोटिक्स आजकल सब जानने लगे हैं। 3D प्रिंटिंग का लाइव एग्जांपल, आज से 15-18 महीने पहले चाइना प्रिंटेड हाउस, 2-story हाउस आउट ऑफ 3D प्रिंटिंग। दैट्स द पावर ऑफ 3D प्रिंटिंग। और अभी तो अपन ये काफी रोबोट्स वगैरह भी देखते हैं कि 6-6 किलो का क्वारंटाइन एंड मेडिसिन एंड स्प्रे, एंटी कोरोना स्प्रे ले लेके उड़ रहे हैं। और ये अपन ने जो बनाए 2-3 महीने के अंदर ही सब बनाने शुरू किए। इमेजिन 3D प्रिंटिंग का जो इम्पैक्ट आता है 5 साल, 7 साल, 3 साल, एंड एवरी नेशन, अभी सब लोग उसको अपने आप को नेशनल बाउंड्री में रखना चाहेंगे रादर देन इंपोर्ट्स, बिकॉज सप्लाई चेन पे सब लोग डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहेंगे इन द चेन सिनेरियो। द इम्पैक्ट विल बी वेरी हाई। जो चीजें हैं, ये एक्चुअल डेटा है अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का। इस डेटा के हिसाब से आप देखना चाहो तो किसी जमाने में, आज से सपोज 6 महीने पहले और उसके 1 साल पहले, इफ अगर अपने देखते हैं, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था 140 लाख करोड़ का था। 140 लाख करोड़ में से करीबन 40%, 30 से 40% BSE 30 कंपनीज का मार्केट कैप है। इन सारी की सारी BSE 30 कंपनीज का बारे में एक चीज मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, जो टाइमलेस लर्निंग है। टाइमलेस लर्निंग यहाँ नहीं, वर्ल्ड ओवर कोई भी कंपनी जो एवरेज कंपनी सेंसेक्स में रहती है, वो आज की डेट, पहले तो था 20-20 साल रहती थी, अभी एवरेज हो गया 12-13 साल। तो आप लोग हर 6 महीने में सुनते होंगे कि ये 2 कंपनी सेंसेक्स में ऐड हो रही है और 2 कंपनी सेंसेक्स से कम हो रही है। मतलब जो आज बड़ी कंपनी है वो कल बड़ी नहीं रहेगी, कोई नई चीज आएगी। जो नई आएगी वो मेगा ट्रेंड में से आएगी, और जो जाएगी वो रीजंस हमने बाजू में लिखे हैं, उसको टेक्निकली हम बोलते हैं डीप शिफ्ट्स। डीप शिफ्ट्स वो होते हैं, एग्जांपल स्टील कंपनी का क्या है, ग्राफेन इज अ बिग सब्स्टिट्यूट। अब प्लांट तो उन्होंने मतलब बैठा दिया स्टील कंपनियों ने, जो 30 साल के लिए बैठा है,
उस प्लांट को बेच नहीं पाते, और प्लांट के ऊपर अगर उन्होंने डेट ले रखी है तो वो उस प्लांट को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि डेट तो देनी होगी। तो नया प्लांट ग्राफीन का बिठाएंगे तो खुद का प्लांट बंद करना पड़ेगा। तो जैसे कोई दूसरा बिठाता है तो तकलीफ होती है, दूसरा नहीं बिठाता है तो लोग इम्पोर्टर्स इंपोर्ट करते हैं ग्राफीन, तो तकलीफ होती है। तो यस, देयर इज एन एग्जिट कॉस्ट। आप बैंक्स को देखते हो तो बैंक्स आर गेटिंग थ्रेटन्ड बाय ब्लॉकचेन। आप कोई कार कंपनीज को देखते हो तो दे आर गेटिंग थ्रेटन्ड बाय शेयर्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग ड्राइवरलेस कार। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को देखते हो तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास दो चीज है, एक तो नॉलेज और दूसरा जेनेरिक मॉलिक्यूल। नॉलेज तो फ्री है आज से 3 से 5 साल के अंदर, वॉटसन कंप्यूटर लेवल का नॉलेज फ्री है, बहुत तेजी से बाहर आ रहा है। पहले खाली गूगल फ्री था, फिर गूगल के मैप्स फ्री आए, अभी ये नॉलेज फ्री आ रहा है वॉटसन का। उस नॉलेज के साथ अगर आपको खाली जेनेरिक मेडिसिन चाहिए, मॉलिक्यूल का नाम चाहिए और ब्रांड का नाम नहीं चाहिए, तो लोग खाली मॉलिक्यूल के नाम पे परचेजिंग करेंगे, ब्रांड के नाम पे नहीं करेंगे। तो जो आप एक टैबलेट लेते हो उसमें 15 नाम लिखे जाते हैं, तो जो चलती है वो चलती है, जिसको हैबिट लगी है हैबिट लगी है। लेकिन जब ये इस किस्म के एप्स मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिसका जेनेरिक सब्स्टिट्यूट मिलता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर को बेनिफिट है। जो इंडस्ट्रीज की मोनोपोली थी वो नहीं है। सो आई सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ओनली दोज जो पेटेंट के बेस पे आगे बढ़े और जिनका खुद का पेटेंट है, बाकी जो जेनेरिक है आई डोंट सी एनीथिंग। अगर कोई उसके साथ ज्यादा लंबा काम करता है, ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है और लंबा काम करना चाहता है 10 साल के लिए, तो वो उनकी रिस्क है। तो एल्यूमिनियम ट्रेडर का याद रखना क्या हुआ, एल्यूमिनियम ट्रेडर का जो हुआ वो इन लोगों का होगा। ऐसा मेगा ट्रेंड्स के बेस पे कंक्लूजन की जा सकती है। सो इफ आई लुक एट एनी सेक्टर, उस सेक्टर, इसको टेक्निकली सर्वाइवल के लिए बोलते हैं शैंक अप्रोच। शैंक अप्रोच इज व्हाट? सेल्फ कैनिबलाइजेशन। सेल्फ कैनिबलाइजेशन आर कॉमन टेक्निक्स कि मैं जानता हूं कि कुछ चेंज आ रहा है, अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करता हूं मेरी टॉप 30 कंपनीज को, तो कोई दूसरा अपनी चीज को लॉन्च करेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इससे पहले कि कोई दूसरा करे, मैं ही उस गेम को बड़े लेवल पे खेल जाऊं। अगर मैं खेल गया तो वो बेट है, बेट इज 50-50 प्लस और माइनस। बट अगर मैं नहीं करता हूं तो वो दूसरे देश की कोई दूसरी कंपनी उसके देश में करती है और वहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट शुरू हो जाता है। तो एनी प्लांट विच इज देयर फॉर 20-30 ईयर्स, एंड अगर वो लोग अपने आप को चेंज नहीं करते और अपन उन पे डिपेंडेंट है, तो हम एक बड़े रिस्क में है। देन वी शुड जस्ट लुक एट buy the product, sell it. We should not be dependent on them. We should not have long outstanding with them. Now, ये तो हुआ, अभी तक हमने दो बातें की है, मेगा ट्रेंड्स एंड टाइमलेस लर्निंग। लोग कैसे आगे बढ़े, एंड these are we calling purpose। तो लोग जो आगे बढ़े उसमें एक तो होता है कि विजन क्या था। विजन इज स्टैंडिंग फॉर पर्पस। अगर गूगल ये बोलता है कि मैं सबको फ्री में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो लोग उसके साथ इकट्ठा होते हैं और उसको सब चीज ऐसी फ्री में दे देते हैं। अगर गूगल बोलता है कि मैं सबको चार्ज करूंगा, तो जो कंटेंट देने वाले वो भी उसको चार्ज करेंगे। तो आज जितना गूगल के पास कंटेंट है एनसाइक्लोपीडिया से ज्यादा उतना नहीं होता। तो अभी जो नए बिजनेस मॉडल्स में जो इमर्ज हो रहा है, विजन शुड हैव मास अपील, दैट्स फर्स्ट। उस विजन को लेके अपने को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वैल्यू चेन एनालिसिस के बेस पे हम वेरियस फैसेट्स पे कैसे कंपेयर टू कंपटीशन, एंड वी कॉल इट वैल्यू चेन एनालिसिस। उसमें से जो अपने आप को डिफरेंशिएट करती है चीजें जिसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। विद द स्ट्रैटेजी लेवल है, अपने तीनों लेवल क्विकली टच करेंगे। And all these things will be backed by names of companies. हम कोई भी चीज यहाँ वहां से मन गठन या किसी से सुन के नहीं बोल रहे हैं, जो भी चीज है सामने आपके पास लाइव एग्जांपल होगा। सो पहली चीज है जैसे विजन, ये सारे एग्जांपल्स है। विजन को स्टार्टअप वर्ल्ड में बोलते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। विजन को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप क्या लाइफ में चेंज करना चाहते हो दूसरों के लिए। विजन इज व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सो अगर अपने देखते हैं, सपोज अपने सबसे पहले ऊपर और नीचे की कंपनी लेते हैं, तो पहले में जैसे आप लेते हैं कि सब लोग पहले फिजिकली कनेक्टेड हुआ करते थे। कुछ कंपनियों ने बोला
I'll connect buyer and seller at marginal price. Example, Amazon and Netflix. और वो खाली उसी सिद्धांत पे चलते रहे, right from their startup days, even after IPO, even after they became big. उसी तरह एक कंपनी थी, एक सिद्धांत था कुछ लोगों का कि हम जो भी प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करके डेवलप करेंगे। तो जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया किसी ने नहीं बनाया, वो सबने मिलकर बनाया। उन्होंने खाली प्लेटफॉर्म अपने आप को उसी चीज पे परमानेंट रखा जो वो हमेशा बोलते थे, और उन्होंने कभी चार्ज नहीं किसी यूजर को। उसी तरह ट्रिप एडवाइसर करते क्या है कि आप जाते हो, आपको अच्छा लगता है कुछ चीज तो आप एक रेटिंग देते हो, और वो आप जैसे हजारों लोगों के साथ वो रेटिंग लेके एक मीनिंग बना देते हैं। सो जो भी चीज है, अगर आपका विजन अपीलिंग है टू क्राउड सोर्सिंग, कोई भी आप सिद्धांत लो, जैसे आप सोचते हो कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, जैसे जीतू का जो आज आपकी करंट स्टैंडिंग है उससे 100 गुना बनानी है और उसमें ये चीजें रहेंगी, अगर उसको आप डिजिटली कनेक्ट करते हो और स्टेक होल्डर्स की एंट्री एग्जिट, बोथ द कंट्रीब्यूटर एंड द यूजर अगर फ्री है, इंक्लूडिंग लिमिटेड टाइम ऑफ देयर्स, नॉट ग्रेट टाइम ऑफ देयर्स, देन प्रैक्टिकली सब चीज बनने लगती है। नाउ दैट्स द पावर ऑफ विजन। अब इसको कंपेयर करते हैं नेक्स्ट स्टेप से, वैल्यू चेन से। तो ये जो वैल्यू चेन है, ये जो आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हो, ये मेरे जूनियर ने बनाई है रिलायंस रिटेल के लिए, और नेक्स्ट स्लाइड में रिलायंस रिटेल की बताऊंगा आपको। ये जो जिन्होंने बनाई है वो 21.5 साल का लड़का था, ऑल्दो ये वाज अ रैंक होल्डर ऑल ओवर इंडिया। तो उनको हमने जो दिया था वो मॉडल दिया था, उन्होंने ये मॉडल अपने पेन एंड पेपर पे ऐसे उतारा, और बाद में मैं मीनिंग क्या आई वो आपको बताता हूँ। तो मॉडल ये है कि कोई भी कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है अपने आप, जैसे आप आपके खर्चे डायरी में लिखते हो और रोज लिखते हो, तो साल भर बाद जो लिखे हुए खर्चे होते हैं उसकी एक बहुत बड़ी मीनिंग होती है। तो उसको एक पावर ऑफ हैबिट है कि आप आपके डेली खर्चे रिकॉर्ड करते हो। आप एक साल तक कुछ नहीं लिखो और फिर सोचो तो आप बह जाओगे। तो वैसे ही जो बिजनेस की भाषा में जो फ्रेमवर्क है, ये वैल्यू चेन एनालिसिस उतारना बहुत जरूरी है। ये नहीं उतार पाते हैं तो लोग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने में उनको डिफिकल्टी आती है। स्ट्रैटेजी मतलब डिफरेंशिएटर, और वो अगर नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो लोग उस पर एक्ट ही नहीं कर पाते। तो व्हाट इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ वैल्यू चेन? वैल्यू चेन एनालिसिस में जो नीचे का भाग आप पिंक कलर में देख रहे हो, उसमें यू जस्ट राइट, ये एक आप आपके लिए बनाओ और आपके दोनों कॉम्पिटिटर्स के लिए बनाओ, या जो आप जैसे अगर कोई फील्ड में हजारों कॉम्पिटिटर है तो किसी 2 आदमी और जिसको आप जानते हो उसके बारे में सोच के बनाओ कि इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सर्विस, इन सब में मेरा क्या डिफरेंशिएशन है, मैं कैसे करता हूँ और वो कैसे करते हैं। खाली जितनी समझ है उतना लिखते हैं एज अ स्टेप 1। ये तो हुआ फाउंडेशन पिंक कलर। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं कि मेरा ह्यूमन रिसोर्स, मेरा टेक्नोलॉजी, मेरा प्रोक्योरमेंट कैसे डिफरेंस है, और मैं अपने आप को गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे रखता हूँ, सेकेंडरी एक्टिविटी। जब अपने बारे में लिखते हैं और ये अपने अपडेट करते हैं एवरी मंथ और 1 ईयर, और दूसरों के बारे में लिखते और अपडेट करते हैं, तो जैसे एक 21.5 साल के जूनियर ने ये किया रिटेल के लिए, तो एक्चुअल में ये बन जाता है। जो स्क्रैच पैड यूज करते जाते हैं, और ये पब्लिश किया है हम एनुअल रिपोर्ट में। तो लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो ये रिलायंस रिटेल का ऑपरेटिंग मॉडल पब्लिश्ड है। तो इफ यू सी, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि बाय मूव सेल में हमारा क्या डिफरेंशिएटर है, वेंडर्स के साथ हम कितने स्प्रेड से कनेक्टेड है, हमारे चैनल्स कौन कौन से है, और आगे भी कौन कौन से रहेंगे फोकस्ड एरिया, और विद इन दैट सपोर्ट सिस्टम में हमारे क्या थिंकिंग है। जब हम ऐसा देने लगते हैं तो हमको एक वैल्यू चेन मिलती है, और उसके बाद आता है कि उसमें से स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएटर्स पुल आउट करो। तो स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएटर्स आई विल सजेस्ट, rather than taking lots of time, मैं एक नाम लिख के देता हूँ, उसका वीडियो जरूर सुनना। Who is the father of strategy 1.0? उनका नाम है मिस्टर माइकल पोर्टर। तो माइकल पोर्टर का वीडियो है which we call it 5 forces। वो चीज जरूर अलग अलग तरीके से एक बार लाइफ में सुननी चाहिए, चाहे 15 मिनट का वीडियो सुनो या 1 घंटे का सुनो। तो माइकल पोर्टर 5 forces, वो ये कहते हैं, और ये आज तक टाइमलेस लर्निंग है, कि जब भी कोई एंटर होता है, कोई भी फील्ड आप सोचते हो, कोई भी नई फील्ड, तो उसमें ये सोचना है अपार्ट फ्रॉम राइवलरी ऑफ कॉम्पिटिटर, दूसरे
उसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कितनी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कितनी है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कितना है। तो दो कंपनीज को कंपेयर किया है। एक है ए स्टैंड्स फॉर, जब आप ए देखते हो तो दैट स्टैंड्स फॉर एयरलाइन कंपनी, पी देखते हो तो फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज जिसमें हमेशा फेवरेबल रहता है कि बार्गेनिंग पावर और सप्लायर रहती नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और कस्टमर की भी बार्गेनिंग पावर नहीं रहती है। एयरलाइन कंपनी में कस्टमर भी बार्गेन करता है कि कौन मेरे को क्लोज में सीट है, और सप्लायर भी बार्गेन करता है। जब तेजी होती है तो वो एयरक्राफ्ट बुक करने जाते हैं, मिलता नहीं है। हेलो, हाँ सर, आवाज कट रहा है आपका जरा। ओह सॉरी, अभी ठीक है, अभी बेटर है सर? हाँ अभी एकदम बेस्ट। सॉरी। हाँ, so when we look at 5 forces analysis, which is again a professional analysis, तो कुछ इंडस्ट्री में हमेशा जो 5 फोर्सेस रहते हैं स्ट्रेटजी के लिए वो फेवरेबल रहते हैं, और कुछ कंपनी में हमेशा एडवर्स होते हैं। एग्जाम्पल, P stands for pharmaceutical, A stands for airline। तो जो जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ सप्लायर की बार्गेनिंग पावर होती ही नहीं है, कस्टमर की भी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। बट एयरलाइन इंडस्ट्रीज में कस्टमर भी अगेंस्ट में है, सप्लायर भी अगेंस्ट में है। जब ये तेजी होती है तो एयरक्राफ्ट सेलर्स के पास एयरक्राफ्ट नहीं होती है बेचने के लिए, वो आपसे मुंह बुला भाव मांगते हैं। और जब रिसेशन होता है तो ऐसे भी आपको खरीदना नहीं है। तो कुछ इंडस्ट्री हमेशा लॉस में जाएगी। अगर 20 साल देखो तो 20 में से 15 साल वो रोते हुए ही मिलेंगे, और कुछ इंडस्ट्री 20 साल देखो तो 20 में से हमेशा 20 के 20 साल कमाती रहेगी। 1-2 साल कुछ हो गया तो हो गया। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो 5 फोर्सेस हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। तो जो भी आप बिजनेस करने की सोचते हो तो आपका 5 फोर्सेस क्या है वो उस चीज में जरूर सोचना है, और उस चीज के लिए डेवलप करने के लिए 1-1.5 घंटे का एक वीडियो जरूर देखिए, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस। खाली उतना टाइप करोगे, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरु है, उनका ही नाम आएगा। सो फर्स्ट वाज वैल्यू चेन, जो हमने प्लॉट देखा 21.5 साल के लड़के ने किया। सेकंड, timeless learning is coming from 5 forces, and all this we call it say strategy 1.0। आजकल जो नई चीजें चालू हो रही है, और ये कुछ लोग, बिकॉज मैं रिलायंस में, तो कुछ लोग पूछते हैं रिलायंस की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जो टाइमलेस लर्निंग का इम्पैक्ट आ रहा है, जो वर्ल्ड में हुआ है वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। वर्ल्ड में तो हो चुका, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 5G था, यहाँ 4G से 5G, आज नहीं तो साल 2 साल में सबके पास हो जाएगा। तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये है विद इन डिजिटल बिजनेस। पहले लोग ई बिजनेस में थे, ई से एम बिजनेस में करना पड़ा डिजिटल में, एंड विद इन एम से यू में करना पड़ा। ई स्टैंड्स फॉर ई बिजनेस, एम स्टैंड फॉर मोबाइल बिजनेस, यू स्टैंड्स फॉर यूबिक्विटस, मींस चलते फिरते जिस जगह पे आप पहुंचे वहां के हिसाब से लोकेशनल की इंफॉर्मेशन आई और वहीं पे धंधा कर लिया। एग्जाम्पल, एयरबस है, फेडेक्स है, जैसे भी आप मूव करते हो आपकी मूवमेंट के हिसाब से दे विल गिव यू एन अपडेट इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट अपडेट। उनका पूरा सप्लाई चेन उसके बेस पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब आपने ई बिजनेस देखते हैं तो ई बिजनेस से कोई एम बिजनेस में मूव नहीं हुआ तो वो कंपनी डूब जाती है। तो जितने भी ई बिजनेस की जो इनिशियल कंपनी थी वो एम में भी गई और एम से यू में भी गई। सो ये जो चीज है, कोई भी चीज में, जैसे पहले स्ट्रेटजी था, मेगा ट्रेंड था, वैल्यू चेन था, अभी कोई भी चीज में खाली डिजिटल मार्ट में जो एमएसएमई में धंधा करता हूं उसका मैंने डिजिटल वेबसाइट बना दी, उससे कुछ नहीं होगा। वी हैव टू थिंक थ्रू कि मेरा खाली ई बिजनेस या वेबसाइट के अलावा उसको एम लेवल पे कैसे लेके जाऊं, दैट इज मोबाइल कंप्यूटिंग, एंड मोबाइल कंप्यूटिंग से फिर यू कंप्यूटिंग में कैसे जाऊं। अगर ये मैं माइग्रेशन नहीं करता हूं देन आई बिकम द सेम ओल्ड शॉप जिसने आज तक वेबसाइट नहीं बनाई। We respect them for their values, but वो शायद उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं या आउट भी हो जाते हैं। उसके बाद जो अभी आ रहे हैं, और अभी जो रिलायंस ने अनाउंस किया था, एंड दिस इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी जो लोग बड़ी कंपनियां जा रही हैं वो प्लेटफॉर्म्स में जा रही हैं, और इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। दिस इज स्ट्रेटजी 3.0। आज की डेट में इसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। होता क्या है कि सपोज कोई भी आदमी, और चाहिए तो आप अमूल जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसके बारे में सोचिए। आज वन ऑफ द जेंटलमैन इन दिस पैनल दे टॉक्ड अबाउट स्टार्टअप फ्रॉम नासिक, वो भी बहुत अच्छी बात थी।
उसी तरह कुछ लोग फ्रिज के प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे और वो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो चीज है ये आज की डेट में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। फ्लाई व्हील मीन्स व्हाट? पहले एक हिंदी में मैं सिंपल बोलता हूँ, फिर एडवांस बात करते हैं। कि 10 आदमी मिलके बोलते हैं, एक आदमी 10 सप्लायर को इकट्ठा करता है कि आप मेरे को कोई भी चीज दो जो आप बेच सकते हो, तो मैं भी आपके लिए फ्री में बेच दूंगा। फिर वो 100 जन के पास जाता है कि मेरे पास ये 10 चीज है, ये इसमें से कुछ लेना हो तो ले लो। तो इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस स्टार्ट करना। इस वक्त मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, खाली ओवरहेड्स मेरा लग रहा है, खाली ओवरहेड्स लग रहा है। द सेकेंड थिंग दैट हैपेंस इज व्हाट? एक बार ये साइकिल शुरू होता है तो मैं अचानक से इतना खर्चा करता हूँ, इतना रीच आउट करता हूँ कि 1000 सप्लायर लोग को बोलता हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, कि इस प्लेटफॉर्म पे इस तारीख को 10,000 लोगों को मैं बुलाऊंगा जो आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। एक तरह से मेला, नेशनल मेला। तो 1000 सप्लायर अपनी कोशिश कर देते हैं कि 10 सप्लायर का तो बिक रहा है, मैं भी मेरा लोड कर देता हूँ उस पर। और अचानक इतना एडवर्टाइजमेंट करता हूँ पूरे नासिक लेवल पे या इंडिया लेवल पे कि उस पर 10,000 लोग आते हैं, फिर थोड़े ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शन मैं मैनुअली मैनेज नहीं कर सकता, तो मुझे बैक एंड टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है। ये बनाने में मेरे को एक विद्या को रिफाइन करना पड़ता है कि कोई भी सप्लायर आए तो उसकी ऑटोमेटिक ऑनबोर्डिंग हो, और कोई भी कस्टमर आए तो उसको वही चीज दिखे जो वो देखना चाहता है। तो ये मैं बैकग्राउंड में प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। उसके बाद मैं ये जो चीज 1000 सप्लायर और 10,000 यूजर के साथ करता हूँ, मैं बोलता हूँ अभी 1 मिलियन सप्लायर आएंगे। जैसे नेशनल सेल्स जिसको सुनते थे अपन कि ये 2 तारीख 30% ऑफ ऑल ओवर इंडिया, आओ फ्लिपकार्ट पे ले लो। और उसके सामने एक यूजर्स अंदर फुटप्रिंट डालते हैं। वो डालने से पहले मैं मेरी टेक्नोलॉजी इतनी वो कर लेता हूँ कि कोई भी सप्लायर आए तो अंदर ऑनबोर्ड कर सके, कोई भी यूजर आए तो अपने आप को ऑनबोर्ड कर सके, और मैं स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डालता हूँ, तो वो स्केल अप होता है। तो जो भी चीज मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी बिल्डिंग से और उसको नासिक लेवल पे लेके जाता हूँ, तो मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंटरवेंशन मुझे करना होगा। So I have to eliminate all the decision points in my business models, but it should be taken on automatic basis, and I carry the risk of initial losses. इस चीज को flywheel 1.2.0 बोलते हैं, which is strategy 3.0. So आज की डेट में जिसके पास भी कोई सरप्लस है, जिसके पास भी कोई यूनिकनेस है, तो चीजें ऐसी ही बिकती है। जिसके पास भी सरप्लस है, हजारों लोगों के पास सरप्लस है, उस चीज को जोड़े, और जोड़ने के बाद मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रखे, तो दैट बिकम्स अ टाइमलेस बिजनेस मॉडल अक्रॉस वेरियस पैटर्न्स। आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? द नेम ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड टुडे इज अमेजॉन। कैसे? दे टेक सम डिपॉजिट्स ऑन एज ऑफ December 31st, 2019, their deposit has crossed 165 billion US dollars. 1 billion US dollars is equal to 7,500 crore. So 7,500 crore multiplied by 165 is the amount of deposit that Amazon has. This deposit level is bigger than the biggest bank. That's the power of flywheel. So flywheel, people can start at building level, which is refrigerator. It can go up to city level, it can go up to state level, it can go up to a national boundary, it can go to multinational boundaries. Users attract users, suppliers attract suppliers, more suppliers attracts more users, more users attracts more suppliers, and that becomes a flywheel. And we all back it together with effective use of technology, with the strength of vision and purpose. That's the emerging strategy and business model across the board. उन लोगों के सामने कोई छोटा आदमी, कोई यूनिक आदमी, कोई सिंगल आदमी कॉम्पीट नहीं कर सकता. So we have to be part of this flywheel in the change scenario. So for example, Amazon स्टूडियो में भी है तो नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिटर हो गया. फोन में आया
ABC का कॉम्पिटिटर हो गया, एप्पल स्टोर का एप्पल स्टोर का कॉम्पिटिटर हो गया, बुक्स में किंडल का कॉम्पिटिटर हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में खुद के ओन यूज ब्रांड बनाना शुरू कर दिया, मार्केट प्लेस जो कि खाली बुक्स थी आज ईबे को कॉम्पीट कर गया। सो कोई भी इंडस्ट्री बॉर्डरलेस हो चुकी है। इट इज नॉट दैट कि मैं सोने का काम करता हूँ या मैं खाली कपड़े का काम करता हूँ। वी कैन गेट इनटू एनीथिंग इफ वी यूज मेगा ट्रेंड्स with vision, mission, technology backed by crowdsourcing. So anything which is to do with crowdsourcing becomes a part of my business model. This is the live case which we have published. Again, I have taken on only the Reliance store. तो इसमें विजन हमने मेंशन किया है, मिशन किया है, कौन से मेगा ट्रेंड्स है जो हमारे को टेल विंड दे रहे हैं वो किया है, उस मेगा ट्रेंड के दौरान हमारी स्ट्रेटेजी या स्ट्रेंथ्स क्या है हमने छापी है, 10 साल का कंसिस्टेंट एक्सपोनेंशियल ग्राफ छापा है ओनली ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस विद लाइव एग्जांपल्स। तो ये हमने हर बिजनेस बाय बिजनेस हमारी रिपोर्ट में छापा है और अपने बलबूते पे छापा है। Now, if I have to look at this is the model for all the businesses, which includes A, refining and petrochemicals, oil and gas, media, geo and retail. और हर चीज का पेज रेफरेंस भी हमने दिया हुआ है, but I'll take questions. Now the question arises, अगर हम में से किसी को कोई भी nobody can predict future, but we can be on the undercurrents which are taking us ahead in the journey. हमारे जैसे लाखों लोग होंगे जो इस चीज को आगे क्या करें उस चीज की सोच रखना चाहते हैं। द क्वेश्चन ये नहीं है कि हम परफेक्ट है कि नहीं है, द क्वेश्चन ये है अगर 100 लोग हैं तो उस बिजनेस में 100 में से 50 तो वैसे ही सर्वाइव करते हैं। जब अच्छा टाइम होता है तो 100 के 100 सर्वाइव करते हैं, खराब टाइम होता है तो 25 लोग सर्वाइव करते हैं। अगर हमने अपनी थॉट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क्स रखी हैं तो परहैप्स जब डाउन टर्न रहता है तो वी आर अमंग दोस टॉप 25 which saves ourselves. So the question is not whether I am running fastest. The question is I am running faster than the people who are leaving behind. If that is the case, then we stay back. Now let me try to connect. There are a lot of things that I have not said purposely, but I'm sharing it as a notes, and these are database evidences. And these are the normal frameworks. Let me directly come to you. There are tipping points which are published globally. These tipping points will impact our businesses. If I have to look at, and because I read the word Jito, so I thought, what is the typical thing that is taught by people who believe in the values that are taught by a particular section of the society? So I would see the following words, which I am now linking to the literature that we have spoken. The first that we spoke was non-violence, ahimsa. तो अगर इसका जो करस्पॉन्डिंग वर्जन आप राइट हैंड साइड में देखोगे इमर्जिंग बिजनेस मॉडल में, नो हार्म टू एनवायरनमेंट, वी कॉल इट ग्रीन सस्टेनेबल ग्रोथ. द नेक्स्ट थिंग इज नॉन स्टीलिंग, हम किसी से कुछ चोरी नहीं करते हैं. तो इसका करस्पॉन्डिंग वर्जन है प्लेटफॉर्म अप्रोच, वी टोल्ड फ्लाईव्हील अप्रोच. दैट्स द इमर्जिंग थिंग दैट इज द बेस्ट. एंड इस बेस पे आज नहीं, जो हमने 50 साल पुरानी कंपनी भी उठा के देखी, तो हमने क्या देखा, हम इनवर्ड फोकस नहीं करेंगे लाइक इंटेल, but I'll create something free for others, and in the process, because I'm creating value for others, someday others will value me, like Google, Facebook, Uber. I'm able to, and that is, I have not taken anything from stealing their ideas or that. मैंने platform create किया. Brahmachari, celibacy. So here we talk about massive transformation and democratization. When we talk about truth, truth is nothing but a strength of purpose. तो हम बोल रहे हैं जिसको हम विजन स्टेटमेंट बोलते हैं. विजन स्टेटमेंट इज द पर्पस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ट्रुथ. देन ओनली पीपल गेट एसोसिएटेड विद योरसेल्फ, लाइक कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ अपूल. एंड देन नॉन अटैचेबल. आप कोई भी चीज देखते हो तो वी से अफोर्डेबल फॉर ऑल. पर्पस इज टू डेमोक्रेटाइज एट अ प्राइस अफोर्डेबल फॉर ऑल. चाहे वो एनर्जी 10 पैसे में हो, चाहे वो वॉटसन का कंप्यूटर हो जो आपको फ्री में नॉलेज दे रहा है,
चाहे वो गूगल की इंफॉर्मेशन हो. सो वॉट एवर इज नॉन अटैचमेंट आई कैन को रिलेट टू द मैनेजमेंट थियरी ऑफ पर्पस फॉर ऑल. I have lots to say, but I'll take a pause and start taking your Q&A in terms of specifics, and what I can correlate, I'll share with you right now. Yes, thank you. Mahendra ji? आपके जो भी क्वेश्चंस हो इन चीज को हमारे जस्ट टू गिव यू माय बैकग्राउंड, आई एम वेल वर्स्ड विद ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की क्या हो रहा है और जो देख चुका हूं. Additionally, I have a confidential group of 8 strategists across the country who are belonging to good either consulting or other organization. Like I'll say one of the businesses of Reliance, जैसे उस level के कई businesses है outside Reliance, तो उसमें से 8 strategists से touch में हूँ मैं, और हम लोग जो भी बात करते हैं हम लोग आपस में रखते हैं, but I know what's happening around that. So without giving names of those companies which are the life situations of India, I will give you what I know. Yes. Mahendra bhai, over to you. Mahendra ji. Yeah. Yes, can I ask one question, Mahendra bhai ji? Yes, please. Yes. Rakesh ji, first of all, outstanding session, one of the best I have ever heard on strategy, and the way you explained, ekdam insightful and you simplified it. I think it's amazing. Hats off to you. With that, sir, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो हमारे मेंबर्स है इसमें से आपने इतना कंटेंट हेवी मटेरियल है और ये सेशन हुआ है, वी गॉट सो मेनी आइडियाज इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग फ्रंटियर्स फॉर ग्रोथ, बट उसमें नाउ इफ वन ऑफ एनी वन ऑफ आवर मेंबर्स वांट टू हैव सम काइंड ऑफ एन एडवाइजरी, अगर या सम एडवाइस एज एन सपोज दे कम आउट विद सम आइडिया इन सिंक विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट यू हैव आर्टिकुलेटेड, तो उसमें कहीं फॉलो अप ऐसा कोई एक सेटअप या इंस्टीट्यूशन है क्या, या कैन दे कम बैक टू यू बिकॉज यू नो यू आर क्वाइट कंस्ट्रेंट फॉर टाइम? इज देयर एनी वे वेयर आवर मेंबर्स कैन बेनिफिट विथ योर फ्रॉम योर विजडम going forward if they come out with some ideas and they need further advice? I'll give you, see, first of all, anybody can lift a call and speak to me, that's not an issue. I'll say a couple of things. अभी जैसे suppose अपने, and this is neither yes nor no, I'm giving you a truthful scenario. Okay. कोई भी चीज enter होते हैं तो there is a आइटम ऑफ 10,000 आवर्स रूल्स. सपोज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है तो 10,000 घंटे उस पर लगाता है, कोई इंजीनियर बनता है तो उसमें 10,000 घंटे लगाता है, कोई टेक्सटाइल में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो उस फील्ड को समझने में 10,000 घंटे लगाता है. तो दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ थिंग. आज की डेट में अगर मुझे किसी को कुछ कहना हो तो मैं 10,000 घंटे की जगह पे एक सेल्फ जर्नी जो होती है, कम से कम 500-700 घंटे की सेल्फ जर्नी कंप्लीट करने का टाइम आ गया है. अपार्ट फ्रॉम फिटनेस, अपार्ट फ्रॉम सेविंग्स हैबिट विच इज अ पावर ऑफ गुड हैबिट्स, इज द रीडिंग हैबिट्स. तो जो रीडिंग हैबिट्स की जब अपने हैबिट डालते हैं तो ये सब चीज विंडोज जो मैंने कहा ये काफी बेसिक्स है कुछ जगहों पे. तो बहुत से जैसे आईएम्स में मैं इतना बेसिक लेवल पे सेशन भी नहीं लूंगा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा उनसे पहले. तो रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करने के लिए ग्रुप बना सकते हैं. नंबर 1 कि व्हाट शुड वी रीड एंड हाउ शुड वी रीड. सेकंड, कोई भी आइडिया होता है तो उसका जो टेस्टिंग सिनेरियो होता है 2 तरह का होता है. एक तो बिजनेस आइडिया होता है और दूसरा स्टार्टअप टाइप का आइडिया होता है. तो स्टार्टअप टाइप का आइडिया का जो टेस्टिंग सिनेरियो, जो लाइव एग्जांपल्स होते हैं, तो आजकल एंजल इन्वेस्टर्स के बहुत से फोरम्स है, तो अपना आइडिया वहां ले जाके प्रेजेंट करते हैं. तो कोई उस पर इन्वेस्ट करने तैयार होता है तो मेरा आइडिया अच्छा है, इन्वेस्ट करने तैयार नहीं होता है तो आइडिया अच्छा नहीं है. तो एंजल फोरम्स हर सिटी में आजकल हो गए हैं, तो वहां पे अपने प्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज सेकंड. थर्ड, व्हाट हैपेंस इज द प्रॉब्लम दैट मैंने जितने भी आइडियाज बाउंस बैक के सुने हैं, and I am in active commitment with free startups in my individual capacity, again not on behalf of Reliance, it's an individual capacity. मैंने ये देखा है कि जिसको जिसका आइडिया जमा हुआ रहता है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. तो उनके लिए मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके 10,000 रुपए दो स्टूडेंट्स को, उनको बोलो कि मेरी रैगिंग इतनी करे कि मैं मेरी बात किसी को ही नहीं बोलूं. खुद की सेल्फ रैगिंग इतनी कराओ कि अपने को अपना आइडिया
इतना अच्छा नहीं लगे कि हम दूसरों की बात सुने, चाहे उसकी गलत है या सही है. So these are the three things I would like to say. So testing back ideas, yes, you can always speak to me. You have my mobile number, and for the benefit of participants, I'll repeat my mobile number. It's 98202-73458. I repeat, 98202-73458. So yes, we can always speak. Second, I'll say inculcate systematic reading habit. Third, inculcate. अगर आपको लगता है कि आइडिया बिजनेस का है, तो जो जैन कम्युनिटी के बिजनेसमैन है, दे आर ऑब्वियसली मच अहेड. सो वो आपको शायद नहीं चाहिए. जो आपको चाहिए है स्टार्टअप रिलेटेड, आपको चाहिए मेगा ट्रेंड्स रिलेटेड. उस चीज का जो बाउंस ऑफ करना चाहिए, वो जो बाउंस ऑफ करते हैं अपने इसमें करेंगे. स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जहाँ पे फंडिंग के लिए लोग जाते हैं, उसमें करेंगे. नाउ व्हाट एक मिसिंग गैप जो अपने में रहता है, वो मिसिंग गैप ये है कि हम जिस चीज को सोचते हैं कि वो बढ़ेगी, हो सकता है वो डाउनटर्न में हो. एनी प्रेशियस मेटल डाउनटर्न, एनी एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज BSE 30 कंपनी, अगर वो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करती है, तो उससे जो एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए. तो वो जो ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन जो मैं 3-4 साल 5-6 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, वो चीज मैं क्विकली ऐसी भी बता पाऊंगा फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस. Okay, sure. Thank you, Rakesh ji. Mahendra ji. Thank you, sir. Yeah. So one more question regarding the yes, sir. precious metals and all that you said. Yeah. कुछ सालों बाद में उसकी वैल्यूज फिर वो मतलब ह्यूमन वैल्यूज बदल जाती है, इसलिए वो बदल जाती है. The precious metals बोलो, precious stones हो गए. So does that the same thing happen in case of your food habits? I mean, somebody has put a question, Mr. Setia, is what is the disruption in the tea industry? Like, I mean, does that the same thing happen here also? This way, there is a concept जो old school of economics थी, उस concept सर आवाज नहीं आ रहा है आपका. जो new economics थी है. So not audible. Sorry. मैं आपको शायद सबको एक बार म्यूट करना होगा, जब मैं फिर वापस अनम्यूट कर देना. I'll try again. अभी आ रही है? Hello. Yes. Hello. Yeah. See, the question is not tea versus other things. The question is, जो आज से 30-40 साल पहले क्या होता था, सप्लाई और डिमांड के बेसिक कर्व्स होते थे कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी एंड वाइस वर्सा. ये कब होता था? जब भी सप्लाई चेन वाज नॉट फास्ट एंड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट वर नॉट देयर. आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट है उसका फंक्शनल सब्स्टिट्यूट है, नंबर 1. और सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज सो फास्ट कि कुछ जगहों पे टेक्नोलॉजीज इतनी स्ट्रांग है कि उसकी प्राइस एक्सपोनेंशियल लेवल पे गिर जाती है. एग्जांपल देता हूं आपको, डीएनए टेस्टिंग. जो सबसे पहले डीएनए टेस्टिंग हुआ था, जीन एडिटिंग जिसको बोलते हैं, तो आप एक कंपनी का नाम लिखिए, ब्रॉड बे कॉर्पोरेशन, और उसने जो जीन सीक्वेंसिंग पहली बार किया था तो $3 बिलियन, मतलब आज के हिसाब से 20,000 करोड़ लगे थे. अब जब मैं उसकी लेबोरेटरी में गया था, उसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर्स है जो आज तक वर्ल्ड में किसी के पास ही नहीं है, जो उनके लिए ही बने हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डीएनए. तो उन्होंने क्या किया है, अभी आपका खाली आपकी मेडिकल रिपोर्ट बनानी है ना, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, तो कितना चार्ज करते हैं मालूम है? 3 बिलियन नहीं करते हैं, $1,000 करते हैं. सो मैसेज क्या है कि कोई भी चीज की सप्लाई या सब्स्टिट्यूट की सप्लाई इतने इंडस्ट्रियल स्केल पे फास्ट की जा सकती है, चाहे वो पावर है या अदरवाइज, कि उसका लिंक ही नहीं है. तो जैसे ही आपका प्राइस घटती है, प्राइस से ज्यादा प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन जितनी डिमांड बढ़ती है उससे ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है, बिकॉज कॉस्ट बहुत लो हो गई है. इट इज दिस गेम दैट वी आर एंटरिंग एंड वी कॉल इट इंडस्ट्री 4.0. अभी जो न्यू वर्ल्ड अपने सुनते हैं इंडस्ट्री 4.0, इट इज व्हाट? एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज व्हाट 3D मैन्युफैक्चरिंग, इट इज व्हाट कि every knowledge that is used in engineering is literally free.
जैसे गिटवॉक पे जाओ तो आपको सारा डिजिटल नॉलेज इज फ्री। आपको गन कैसे बनानी है वुड से, उसका नॉलेज इज फ्री 3D प्रिंटिंग में। वो अपने लोग ये सब बातें नहीं करते हैं। तो लोगों के पास इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस आ रहा है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आ रहा है कि वो सप्लाइज डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर। I'll give you one more example of supply of the world's biggest information. अभी जैसे अपने लोग देखते हैं जीडीपी डेटा, तो लोग बोलते हैं ना कि कट ऑफ अप टू Feb 20th का मैंने कट ऑफ लिया और आज मेरे पास डेटा एग्रीगेटेड है फॉर इंडियन इकोनॉमी। गो टू अ वेबसाइट कॉल lyingbastards.com। तो ये जो है मेरे प्रोफेसर की है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसका नाम है रेबेको। व्हाट ही डज, 2 बिलियन प्राइसेस ही ट्रैक एवरी सेकंड। उसके पीछे एल्गोरिज्म बनाया है। तो यूएस फेड को मालूम नहीं होता है, इंडियन गवर्नमेंट को मालूम नहीं होता है कि उनका इन्फ्लेशन क्या है, बिकॉज वो हर सेकंड 2 बिलियन प्राइसेस ट्रैक करता है थ्रू एल्गोरिथम्स। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, द ट्रेडिशनल वेज, जैसे लोग सोचता है कि टेस्ट बदल गया तो इसलिए टी की सप्लाई हो गई, बढ़ गई। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, कब कौन से दुनिया के कौन से देश से क्या सब्स्टिट्यूट लाके सप्लाई कर देगा अपने को पता भी नहीं चलेगा। And there is a huge genetic modification happening in food industry. Sure. Thank you. Mahendra ji? Mahendra bhai? Yes, one more question has come. Sir, is there, you talked about the business models and all. So, are the business models or the technology developments agnostic to political developments, political trends, I can say? तो उसका मैं देता हूँ, नहीं उसमें आपको आंसर दे देता हूँ। ये रहा, इसमें देखो आप जब भी थर्ड कॉलम देखते हो तो पॉलिटिकल लिखा है जी। तो नहीं, तब भी आप अच्छी चीज करते हो ना, तो शुरू में उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी जैसे लो होती है, ग्रोथ फेज पे नॉर्मल होती है, मैच्योरिटी स्टेज पे हाई होता है, और जब वो ट्रांसफॉर्म करती है तो उसकी वेरी हाई हो जाती है। एग्जाम राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं हो रही है राकेश जी का। हाँ, शायद वो ऑफलाइन हो गए। नहीं सर है, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हाँ राकेश जी आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। राकेश जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अभी सॉरी, वी कैन हियर यू नाउ सर। यस राकेश जी आपकी आवाज फिर से अनम्यूट हो गई है। हेलो, यस यस ठीक है। तो अभी जो हम बोलना चाह रहे थे वो ये था कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी शुरू में लो होती है। पॉलिटिकल को कुछ करना ही नहीं होता है जब आपका लेवल कम होता है। जब आप हजारों आई विल से बिलियंस ऑफ पीपल, 100 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, तो पॉलिटिक्स इंटरप्ले करने लगती है फॉर इट्स ओन शेयर। एग्जाम्पल, जब आप है ना आपका एक म्यूचुअल कनेक्शन बनाते हो कि आप लोग आपस में बात कर सको 1000 लोग, तो आपको गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है। आप 1 लाख लोगों को इनवाइट करते हो तो थोड़ा लोकल लीडर्स बोलते हैं, और जब आप 1 बिलियन 100 करोड़ लोगों को फेसबुक की तरह इन्फ्लुएंस करते हो तो गवर्नमेंट बीच में बोलने लगती है। So there'll be a political intervention and there'll be a political solution. Political solution is what? कोई देश बोलता है मेरे यहाँ मत करो, ठीक है मत करो, तो दूसरे देश जो करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और वो आगे बढ़ते हैं तो जो पीछे रह गया वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, any technological development will have a political compulsion, will have a political resistance as part of inherent journey। और वो मैंने स्लाइड में कॉलम 3 जो था हमारा, उसमें 5 स्टेजेस लिखा है। तो वो 5 स्टेजेस से प्रैक्टिकली सबको गुजरना पड़ता है, लेकिन उस गुजरने के दौरान देयर आर प्रोफेशनल्स हु विल गिव यू सॉल्यूशंस अराउंड दैट, और वो सॉल्यूशंस सीईओ को वैसे भी नेचुरल कोर्स में आ जाएंगे। तो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, देयर विल बी अ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, लेकिन वो निकल जाते हैं, उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। महेंद्र भाई, जितेंद्र जी टाटिया ने हैंड रेज किया हुआ है। यस, जितेंद्र जी प्लीज कम। Rakesh ji, thanks a lot for your input. I think it was extremely valuable. Can you throw some light on your आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। about circular economy? Yeah.
Am I audible? Yes, I think. Am I audible? या जितेंद्र जी, Yes. आपका यही क्वेश्चन है ना कि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में राकेश जी का ओपिनियन, करेक्ट? Yeah. Yeah, okay, sir. Yeah, what I want to ask is what is his view about circular economy, especially that maybe capitalist socialist view has not been sustained. Now, are we looking at something in between to create a circular economy? I'll answer this. No, yeah. See, सर्कुलर इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है ये टेक्निकल वर्ड कॉइन किया गया है कि जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं वो वेस्ट नहीं होके वो फाइनल वैल्यू में बन जाए। एग्जाम्पल कि जब हम पुराने जमाने में खाना खाते थे और उसके बाद जो ह्यूमन वेस्ट होता था उसकी बाद में खाद बन जाती थी इन सम फॉर्म और द अदर। वैसे ही एनिमल वेस्ट जो होता है, एनिमल वेस्ट का आपको मैन्योर भी बन जाता है और बाद में उस पे झाड़ वगैरह भी उग जाते हैं और वापस से आप उसको कंज्यूम करते हैं। दैट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, देयर आर सर्टेन वेस्ट जो रिसाइकल नहीं हो पाते। एग्जाम्पल, और उसमें से आई से टू बिगेस्ट वेस्ट आर ए CO2, दैट इज कार्बन एमिशन। Technically, GRI, Global Reporting Initiatives, they track 130 parameters. But उसमें से अगर एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड के लिए, I'll say foremost, far ahead than any other parameter by leaps and bounds, is only CO2, carbon emission. So whatever carbon we are emitting, our business operation should absorb that much of carbon. अगर हम उतना करते हैं तो वो सर्कुलर इकोनॉमी होती है, that is with respect to carbon. The second thing that is happening is with respect to e-waste. E-waste day by day बढ़ता चला जाता है और वो जो बढ़ता चला जाता है उसका solution नहीं है। E-waste के साथ जो ट्रेडिशनल वर्जन था वो था hazardous waste, जिसके लिए गवर्नमेंट के जरूर लॉ है कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, लेकिन वो लॉस खाली hazardous कैटेगरी के लिए है। बट जो नॉन hazardous कैटेगरी के है वो भी प्रैक्टिकली एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक्स, इफ इट इज नॉट मैनेज्ड वेल। So this end-to-end conducting a responsible business, जहाँ पे हम अपने circular economy, yeah, हाँ बोलिए। Sir, Mahendra भाई, Sir, sorry to interrupt you. My question was more perspective. अच्छा, perspective. So perspective ये है more from an it is more economic. I'll answer this. Yeah. The clear perspective is it is more a noise than a reality. It is more a lobby than a necessity. See, whatever people are damaging, they know. So I'll give you a live example of lobby. अगर अपने को मालूम है कि CO जो सब एग्जाम्पल, मैं आपको सर्कुलर इकोनॉमी का ही लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि आपको 1 मेगावाट पावर बनाना है तो उसके लिए आपको 450 किलो कोयला चाहिए और 450 किलो कोयला जब again टाटिया जी, एक मिनट, हम we will move on if it is okay. एक दो क्वेश्चन, if it is okay. Yeah, no. I have a follow up if it is okay Sure. with you. Yeah, no problem. No problem. Sure. Mahendra ji, can I ask one question? Yes, please. Yeah, sir, राकेश जी, आपने कहा था कि जैसे कि स्मॉलर सिटीज डेवलप होंगी और रूरल एरिया में देयर माइट बी अ फोकस, और सेकंडली आपने जूसेस या शुगर फ्री वो भी चीज कही थी। So in the interest of our members, Nasik being the agri hub, और काफी सारे members है वो जो agri related businesses में, और दूसरा because of the climate in Nasik and adjoining areas, आपका are there any specific things or opportunities that you see in line with the framework that you have laid out in your discussion? Yes. हमारे members के लिए कुछ अगर आप इसमें कुछ ideas दें which they can explore. Yeah, I'll suggest go to website of MIT, Massachusetts Institute of Technology. Okay. उन्होंने एक चीज है, मैं आपको साथ एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ। The moment because you just raised a question, I had something elsewhere. I'm just connecting that right now. Okay. अभी एक चीज है जो डेवलप की गई है और वो अपने को इंडिया में लानी है। Okay. कि आप ऊपर से सैटेलाइट से फोटो खींचो या ड्रोन से फोटो खींचो आपके फार्म्स की, आसपास के एग्री फार्म्स की, तो उस फार्म की फोटो वो डेटाबेस में ले जाता है और आपकी कौन से पत्ते खराब है या यहाँ पे और कितनी इंटेंसिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है,
वो जवाब को मशीन लर्निंग के थ्रू ग्रो कीजिए। वो अगर कर पाते हैं then it becomes an organized farming जिसमें से चोरी भी नहीं हो सकती, because anything which is clicked हो जाती है तो वहां से चोरी भी नहीं हो सकती, जिसको भी संभालने आपने दिया है। तो आज जो एग्रीकल्चर में मेन चीज क्या है, एक तो इनएफिशिएंसी, दूसरा टाइम से, चाहे उसको पानी दिया है या सॉइल दिया है, टाइम से काटा है या नहीं काटा है, और अगर उसका देखभाल जहाँ पे अगर कुछ इंसेक्ट्स लगे हैं तो ड्रोन जाके उधर ही उसके ऊपर स्प्रे किया है नहीं किया है, और अगर कोई ओनर है तो उसको कोई कंट्रोल भी नहीं है लेबर पे कि उसने काम क्या किया है। तो इफ वी आर एबल टू हैव इट अ डिजिटल बेस्ड ड्रोन बेस्ड प्रोसेस एज अ पायलट एंड देन वी स्केल अप टू 1000+ माइक्रो एग्रीगेटर्स, जैसे अमूल ने दूध के लिए किया, मोर देन मिलियन पीपल शेयर इट, तो अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू चेंज द एंटायर बेल्ट। आज से थोड़े साल पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो इसमें आया था पंजाब में, नाउ अभी आएगा जहाँ पे फार्मर्स कोलैबोरेट एंड ब्रिंग an effective use of technology, combining satellite images, combining robots, combining drone and combining machine learning. ये एक बड़ी चीज की जा सकती है as a minimum viable product. Sure. Thank you, sir. Thank you. Now, Shantilal ji, Mahendra ji, should we move on to our vote of thanks? Yes, please. Ravi ji Patil. Yeah, Ravi ji Patil. Patel sir. Yeah, I am here. Sir, please go ahead. Yeah, I would like to thank our eminent speaker Rajesh Ji Agarwal, Vice President Reliance Industries, who honored this meeting with us with his inspirational thoughts. I'll say a thought-provoking presentation. I would also like to thank our Prafulji Bardia, who has played a key role to make this happen. Also, I would like to thank Mr. Rajesh Ji Sakla, rest of Maharashtra Jito, our audience and Jito committee for making this event graceful. Thank you so much. Thank you. राकेश जी, आपको राकेश जी, हम तो आपको अभी मुझे लगता है बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जो आपसे और कुछ सीखना चाहते हैं, और ये जो इनसाइट्स है वो पियरलेस है, आपका अमेजिंग डेप्थ ऑफ नॉलेज है। तो होपफुली वी विल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मोर सच presentations from you and continue to learn from you. Thank you. Everybody is always welcome. I have never charged a single rupee for any of my training sessions or students in my life. In my life, whenever I am exchanging any knowledge, I have never charged a single rupee, nor I'll charge in my remaining life. Sure, thank you very much. Nice of you. Thank you very much, sir. Great. It was a great amazing session. Thank you very much. Truly amazing. Amazing. Yes. Thank you. Yes. Thank you, Shantilal ji. Great insights. Hats off to you, sir. बहुत बढ़िया हो गया। और प्रफुल्ल जी अपर साहब बर्डिया साहब को भी थैंक्स बोलो। प्रफुल्ल जी आपने, आपकी वजह से हमको आज ये फीस्ट ही बोलना चाहिए, इसको नॉलेज की फीस्ट मिली, और इतना उनका डेप्थ है, ये बहुत ही गहरे थॉट लीडर है वर्ल्ड के, और उनका मतलब कि हमको टाइम लगेगा थोड़ा पूरा ऑब्जर्व करने का, बट वी विल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग हिम अगेन ऑन अ फ्यू ऑफ आवर प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू। यस, 100%। सर, आपने जो आज इनसाइट्स दिए है, इससे हमारे सोचने का तरीका हमको मतलब बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा सर, ताकि कहीं हम पीछे न छूट जाए। आज अभी आपसे सुन के ये पता चला है कि हम अभी भी बेसिक्स पे अटके हुए हैं, ताकि मतलब दुनिया काफी आगे जा चुकी है और हम अभी वहीं पर अटके हुए हैं कि कल क्या होगा, कोविड के बाद क्या होगा। आप उसके कई ज्यादा आगे सोच रहे हैं सर। Yes. Great. Sir, you should consider, if you have not already done it, but I think we will really be, your potential listeners, if you put your thoughts together in the form of a book or maybe a video series, कि आपका knowledge इतना ज्यादा है, आप जितना आपसे समझे उतना सबको फायदा होगा। हमारे members को तो in particular, they will be deeply benefited by these. Sir, आपका YouTube पे कुछ videos है क्या? नहीं, हमें डाले नहीं है, बनाए भी नहीं थे, डाले भी नहीं है। अच्छा। I've just recently created a second home where I'm putting a video center also in place. So उसमें एक साथ किसी दिन 30-40 बना के फिर एक साथ डाल दूंगा। अभी तो वो उस पे उतना टाइम दे नहीं पाया, लेकिन सोच रखा है कि कभी दूंगा। सर, एक सवाल है, अगर अभी आप इजाजत दे तो, अभी जिस तरीके से रिलायंस इंडिया की
सब में ज्यादा डायनामिक मतलब कंपनी बनती जा रही है। जब वो जियो में आए थे शुरू में लोगों को लगा नहीं था क्या है, फ्री में मोबाइल दे रहे, फ्री में लोगों को आदत डालेंगे बाद में निकल जाएंगे, इस तरीके का लोगों के मतलब परसेप्शन था कि मतलब ये आदत लग जाने के बाद में आप चार्ज करोगे। तो ठीक है, आपने जो चार्ज किया वो इतना रीजनेबल था कि लोगों को वो आदत लगने के बाद में भी अभी भी जियो को छोड़ के नहीं गए। तो अगली ऐसी कौन सी चीज है जिसमें जियो मतलब रिलायंस वेंचर करना चाहेगा, मतलब ऐसी कौन सी और चीजें आ रही है जो हमारी आदतों को बदलेंगी, हमारे सोचने के तरीकों को बदलेगी, हमारी जिंदगी के अंदर जो मतलब हम लोग पुरानी बातों से चिपके हुए हैं उसको छोड़ के फिर से दोबारा रिलायंस की तरफ भागेंगे। इस तरह से ऐसी कौन सी चीजें आ रही है? सी लाइफ में जितने भी लीडर्स होते हैं कोई भी परमानेंट नहीं होता है। तो जो इंडिया का दिखता है और उसमें जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी होगी वो करती रहेगी, और जो नहीं करेगा तो कोई दूसरी कंपनी करेगी। तो जो मुझे इंडिया के लिए दिखता है, और बिकॉज आई एम रिलायंस, मुझे भी लगता है कि शायद रिलायंस ही वो करेगा। फर्स्ट जितने भी टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे दैट विल बी ओनली थ्रू प्लेटफॉर्म्स, दैट इज वन। So over a period of time, there will be cryptocurrencies. Cryptocurrency is the only currency which cannot be published unlimited. आजकल तो क्या है, जिसकी नेशन की हालत खराब होती है वो पैसे छाप देता है। पैसा ही तो छापना है, और क्या करते हैं। उसको अच्छी लैंग्वेज में डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो there will be a commonality which will emerge through cryptocurrency, और जो अपने ट्रांजेक्शन करना पे, उबर पे, ऐसे बहुत सी चीजें होंगी। द सेकेंड जो मुझे लगता है, लोकल लेवल पे कंसोलिडेशन बहुत होगा हर जगह का, जहाँ पे भी जो यूनिकनेस है, चाहे वो नासिक के ग्रेप्स है या कंसोलिडेटेड फार्म्स है, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज करके उसकी एफिशिएंसीज इंडिया में नहीं दूसरी जगह पे भी सब जगह बढ़ रही है। जापान तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, तो वो नॉलेज अपने को सबको फ्री आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज फिजिटल। फिजिटल मींस कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल। तो जो कंपनी ये करेगी, तो रिलायंस जो डिक्लेयर किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, वन इज न्यू कॉमर्स विच इज मोर देन दैट ओनली ऑनलाइन एजीओ सेलिंग। सेकेंड व्हाट वी आर सेइंग इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो अगर एक स्पीकर एक कॉलेज में जो इंडिया की बेस्ट स्कूल हो, वहां पे अगर स्पीकर कुछ बोलता है तो खाली 40 स्टूडेंट्स को सुनाई देता है, 4 लाख स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं देता है। तो एंटायर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोथ फॉर लर्निंग as well as earning which is phygital, इस चीज का जो बैकबोन देगा वो आगे बढ़ेगा, मुझे वो दिखता है। और उसमें हो सकता है कि हम लोग शायद नंबर 1 रहे। क्या बात है सर। तो बोथ फिजिटल एज वेल एज डिजिटल। जैसे अभी अन अकेडमी है, इस टाइप के कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो टीचिंग और तो इसी को लेके एक आगे सवाल 2 मिनट। जो अभी प्रिंटिंग मतलब जो यूएस का डेफिसिट फाइनेंसिंग अभी जो कर रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस मतलब ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन जो लोग प्रिंट करके फाइनेंसिंग करेंगे, जो जंग बॉन्ड्स खरीदने वाले हैं। तो विल दिस एक्चुअली चेंज द डॉलर एज द डोमिनेंट करेंसी इन द वर्ल्ड एंड क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली गेनिंग ग्राउंड? माय व्यू इज स्ट्रांग यस। ओके, स्ट्रांग यस सर। वन मोर थिंग। अच्छा, एक मिनट, क्रिप्टो करेंसी नहीं बढ़ेगी। पहले आज से कई साल पहले क्रिप्टो करेंसी 30-40 थी, 500 ही। एक साल पहले, सिर्फ एक साल पहले 1200-1500 करेंसीज थी। आज जब अपन बात करते हैं तो 6000 करेंसी है। इन 6000 करेंसी में से हर करेंसी को आप अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हो एक्सेप्ट वन। क्रिप्टो करेंसी में 6000 करेंसी है, 6000 में से खाली एक करेंसी है जिसको आप प्रिंट नहीं कर सकते अनलिमिटेड। बाकी सब करेंसीज को आप अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप पैसे छाप सकते हो इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट नोट छाप सकती है, क्रिप्टो करेंसी कितनी भी छाप सकते हो, आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक्सेप्ट बिटकॉइन। बिटकॉइन इज द ओनली क्रिप्टो करेंसी व्हिच कैन नॉट बी प्रिंटेड मोर। ओके ओके ओके, ओनली बिटकॉइन, नॉट अदर्स। हाँ ओके ओके, वो सिर्फ माइनिंग से ही होती है सर। अभी एक सवाल और अभी इसी से रिलेटेड। अभी चाइना जो ओरिजिनेटर है ये वायरस का, जिसकी वजह से आज हम आपस में बात कर रहे हैं, तो थैंक्स टू चाइना एंड दिस कोविड। अदरवाइज ये बात नहीं होती थी सर, आपसे मिलने के और ये सब मौका मिला है उसके लिए चाइना को थैंक यू। अदरवाइज मतलब एक सार्कास्टिक इसके अंदर बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो मेरा सवाल ये था सर कि मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से अभी मतलब ग्लोबल वाइज चाइना के खिलाफ मतलब सारे लोग इकट्ठा हो गए, और अभी ग्लोबलाइजेशन ये वर्ड जो है ना, अभी मेरे ख्याल से अभी हर कोई अपना कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएगा, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो उनके लिए, उनके पीपल्स के लिए जो सही रहेगा वो करेगा। इसके अंदर
चाइना से जो बिजनेसेस माइग्रेट होके आएंगे उसमें रिलायंस किस तरफ अपने आप को मतलब पहले से ही वो बिजनेस लीडर है और अपॉर्चुनिटीज के अंदर मतलब पहला कदम जम के मतलब दमदार कदम रखने के लिए रिलायंस का मतलब इतिहास रहा है कि जब वो कदम डालती कोई भी चीज में तो वो पुरजोर कदम रहता है और उसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। तो आने वाले समय में चाइना से जो बिजनेस मतलब निकलेंगे बाहर या जो भी कुछ बिजनेस के अंदर रीग्रुपिंग होगा, रीअरेंजमेंट होगा, उसमें इंडियन इकोनॉमी के लिए और पर्टिकुलरली रिलायंस एज अ ग्रुप हम कहाँ देखते हैं सर इसको, कैसे देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी को? I'll put it in largely 3 categories. I'll not use the word Reliance. It will be any business house. और एक तो चीज, जो भी चीज फिजिकल होती है, फिजिकल कोई भी चीज होती है, चाहे वो ईंट, पत्थर, सीमेंट, स्टील, जो भी आप होता है, ये इसमें जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो लाइट है इन टर्म्स ऑफ वेट, कौन सा प्रोडक्ट है लाइट होने के बाद स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसमें फंगस और ड्यूरेबिलिटी नहीं है, और ये चीज जो आदमी स्केल पे बना सकेगा वो आदमी लोगों को सर्व करेगा। एडिशनली इसमें से कुछ वेरिएशन होंगे, जैसे हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो नए होते हैं, जैसे आज हमारे पास एक प्लास्टिक है विच इज सेल्फ रिपेयर प्लास्टिक, कि वो अगर उस पर स्क्रैच आती है तो थोड़े दिन में स्क्रैच अपने आप चला जाता है, तो सेल्फ हीलिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज एट लेबोरेटरी लेवल। तो वैसे बहुत सी चीजें हैं, खाली हमें नहीं, इन्वेंशन एक ऐसी चीज है जो सबके दिमाग में हो सकती है, सब इंडस्ट्री में हो सकती है, सब यूनिवर्सिटीज में हो सकती है। तो ऐसे बहुत सी चीज हो रही है, तो उनमें से जो सबसे पहले आएगा फॉर फिजिकल रिलेटेड मैटर्स वो मास कंजम्पशन का बेस देगा। द सेकेंड थिंग इज कमिंग, फिजिकल को डिजिटल प्लस बैक्ड बाय एआई कौन कनेक्ट करेगा, तो उसमें अभी तक चीजें बनी नहीं है, हजारों लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हमको लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे तो हमारा उसमें सबसे आगे हो जाएगा। फिर इन चीजों को कनेक्ट करने के लिए कॉमन करेंसी चाहिए, तो फिनटेक टेक्नोलॉजीज विल प्ले अ लार्जर रोल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिनटेक टेक्नोलॉजीज, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म फॉर अदर्स, जैसे हमारे मोर देन 30 स्टार्टअप्स है आज की डेट में, इंक्लूडिंग इन एजुकेशन, तो गिविंग डिजिटल कैपेबिलिटी टू अदर, उसके लिए खाली प्लेटफॉर्म आप लीड करो, और जो ह्यूमन थिंग्स विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ फिजिकल थिंग्स, और फिजिकल थिंग्स एनीथिंग व्हिच इज टू डू विद लाइट वेटिंग ऑफ मटेरियल, more strength to material, no expiry date of material, and including a combination of self repair, ये जो ला पाएगा वो जीतेगा। Yes, I think now we should let Rakesh ji we should release him because आपने काफी आपको extend कर दिया सर आपका time. Sorry for that, and we had a very nice session. Great talking to you, and आंखें खुल गई हमारी तो. Thank you very much. Great learning experience, and you showed us our limits, and now we'll try to update ourselves, and we'll definitely see that video by Michael Porter. Yes, sir. Yes, thank you, sir. Thank you very much. Have a nice time. Thank you. Thank you, sir. Take care. Bye-bye. Okay. Bye.